اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں سب؟ آج جو ہم ناول شروع کر رہے ہیں اس کا نام ہے کہیں جگنوں کی کتار میں بائے فاخرہ جبیں۔ ہو گندکاں توڑ دیے مٹیارے، ہو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی۔ بڑی مستقل مزاج ہے یہ مٹیار، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل گنداں توڑ رہی ہے۔ دوپٹے سکے گرد کروشیے سے بیل بناتی نازنین نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر صفی الحسن کو دیکھا، جو بیڈ پر سٹیکر لگاتے ہوئے کتنی ہی دیر سے ان جملوں کی گردان کیے جا رہا تھا۔ ہو گندکاں توڑ دیے مٹیارے، ہو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی، ہو تو نہیں جان دی۔ ایسی المناک ہائے پر آ کر تان ٹوٹی تھی کہ نازنین کے ہاتھ سے کروشیا اور مینا آپی کے ہاتھ سے گڈو پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ مہرین اپنے ماسودہ چہرے کے ساتھ بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر کو امڑ آئی تھی۔ شہزادی سناور ریکنگ پر آدھی سے زیادہ نیچے لٹک رہی تھی، حقیقت معلوم کرنے کو، اور روکی پچھلے باغ سے اس ہائے کا پس منظر معلوم کرنے کو بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اف امی حضور، یہ کیا ظلم کر ڈالا آپ نے؟ سبی نے تمام بینوں کو پوری طرح لطف اندوز ہوتے دیکھ کمر سے ہلانے کا ارادہ موقوف کرتے ہوئے نہایت دردناک آواز میں امی سے شکوہ کر ڈالا تھا۔ بالکل ٹھیک کیا امی نے، کوئی ایک آدمی گا رہا ہو تو انسان برداشت بھی کر لے، مگر سبی تم تو پورے محلے کو ساتھ لے کر گاتے ہو، وہ بھی اتنا بے سرا کہ اطراف میں بسنے والے گدھے کو اور کوے اپنی سماعتوں سے محروم ہو جانے کی دعا کرتے ہیں۔ مہرین کی اس سے کبھی نہیں بنی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تم سماعتوں سے محرومی کی دعا مانگتی ہو، مگر یہ علم نہیں کہ تمہارا شمار اول ذکر میں ہوتا ہے یا مؤخر ذکر میں۔ لیکن اس بات پہ بھی بحث بعد میں ہوگی، فی الحال تو تم اپنی شکل گم کرو۔ قسم سے ہزاروں سال پرانی ممی لگ رہی ہو اس وقت۔ وہ مہرین پر چوٹ کرنے کے بعد دوبارہ امی کی طرف پلٹا تھا۔ بتائیے نا امی حضور، آخر کس جنم کا بدلہ لیا ہے آپ نے ہم سے؟ کیا آپ کو ہم پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ اگر ایسا بھاری ہاتھ ہاتھی کو بھی پڑ جاتا تو وہ بھی لڑکتا ہوا کوسوں دور جا گرتا۔ قسم لے لیجئے، ابھی تک سنسناہٹیں ہو رہی ہیں پورے جسم میں۔ آخر ہم نے ایسا کیا قصور کر دیا تھا؟ بتائیے امی حضور، بتائیے، ورنہ ہم ابھی اپنی جان دے دیں گے۔ سبھی پوری قوت سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، مبادا اس دوران وہ دوبارہ اس کی کمر کا مزاج نہ پوچھ جائیں۔ مگر قصور امی حضور کا بھی کہاں تھا؟ کوئی 5ویں مرتبہ انہوں نے مینا سے بات کرنے کے لیے منہ کھولا تھا اور 5 مرتبہ ہی اس کم علم مٹیار نے ان کا منہ بند کروا دیا تھا، اور منہ بند ہوتے ہی اگر ان کے ہاتھ کھل گئے تھے تو اس میں تعجب کیا تھا؟ 1000 دفعہ کہا ہے کہ بڑے آپس میں بات کر رہے ہوں تو تمیز سے بیٹھا کرو، مگر مجال ہے جو تم پر کسی بات کا ذرا سا بھی اثر ہو۔ کہنے کو نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہو، مگر حرکتیں گھسیاروں جیسی ہیں تمہاری۔ امی کا نوابی خون جوش میں آ رہا تھا۔ میرا خیال ہے گزیاروں کی جگہ مراسیوں کا لفظ مناسب رہے گا۔ روکی نے بڑے ادب سے توصیح کی۔ جواباً سبی کا بیٹ اس کے تختے پر آ پڑا تھا، اس کے ٹکنے پر آ پڑا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں مالکوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے؟ اف، میری مجال کہاں کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں؟ وہ ٹکنا سے ہلاتے ہوئے منمنایا تھا۔ بیٹ ٹکنے پر لگا ہے مگر چوٹ غالباً دماغ پر آئی ہے۔ سبھی بڑبڑاتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ مسز فرقان نے تو ڈیپ فریزر خرید لیا ہے، مینا آپی امی کو بتا رہی تھی۔ کیوں، کوئی خاص وجہ؟ سبھی کو مینا آپی کے لہجے نے چونکا دیا تھا۔ ہاں بھئی، بقر عید جو آ رہی ہے۔ ہاں بھائی، بقر عید جو آ رہی ہے تو کیا بقر عید پر وہ ڈیپ فریزر کی قربانی کریں گی؟ سبھی کی حیرت بجا تھی۔ جی نہیں، ڈیپ فریزر میں بیٹھ کر عید منائیں گی، روکی نے وضاحت کی، مگر امی کی شعلہ بار نظروں نے دونوں کو یکلک خاموش کروا دیا تھا۔ اور ہاں امی، مسز فرقان اس دفعہ 2 قربانیاں کر رہی ہیں۔ مینا آپی نے امی کو نہیں اطلاع دی تھی۔ ایک تو مسٹر فرقان کی اور دوسری، سبھی کا لہجہ سوالیہ اور انداز شرارتی تھا۔ روکی، صبر کا پیمانہ لبریز ہوتے ہی امی نے روکی کو پکارا تھا۔ اٹھاؤ یہاں سے اسے۔ انہوں نے سبھی کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا گویا کچرا اٹھانے کو کہہ رہی ہوں۔ مگر امی حضور، سبھی ایک دم گڑبڑا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے روکی کے بازو اسے بری طرح اپنے شکنجے میں لے چکے تھے۔ امی حضور، رحم کیجئے، خدارا رحم کیجئے، سبھی بلبلا رہا تھا، مگر روکی اس کی احتجاج کرتی ٹانگوں اور فلک شگاف ناروں سے بے پرواہ ہو کر اسے اندر لے گیا تھا، حتیٰ کہ اس نے سبھی کے دونوں ہاتھوں کو بھی پوری طرح نظر انداز کر دیا تھا جنہوں نے اس کے بالوں کو بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ معلوم نہیں اس خط کا متن کیا تھا کہ جس کو پڑھتے ہی امی کو ان کے ہر کام میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ دیکھو ذرا اس مہرین کو، بالکل اونٹوں کی طرح چلتی ہے۔ امی نے مینا آپی کو مہرین کی طرف متوجہ کیا جو ابھی 2 سیڑھیاں پھلانگتی چھت سے نیچے آئی تھی۔ مہرین، یہ کوئی طریقہ ہے چلنے کا؟ خبردار جو آج کے بعد میں نے تمہیں یوں کٹکڑے لگاتے دیکھا۔ لڑکیوں کی طرح سہج سہج کر چلنا سیکھو، یوں جیسے پانی پر پاؤں دھرتے ہوں۔ لیکن امی، پانی پہ پاؤں دھرنے سے تو پھسلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مہرین کی معصومیت پر امی جل کر رہ گئی تھیں، جبکہ شناور کی شامت دوپہر کے کھانے پر آئی ہوئی تھی۔
ये रोटी तुमने बनाई है, किनारे कहीं से कच्चे हैं तो कहीं से मोटे। आज से नोवेल ड्रामे सब बंद, पहले ढंग से खाना पकाना सीखो। और हाँ, ये बालों में कभी कभार तेल ही डाल लिया करो, कैसे उजड़े उजड़े लग रहे हैं। उनकी निगाह बात करते करते सनावर के शोल्डर कट नरम बालों पर जा पड़ी तो झट से मौजू भी बदल गया था। सबीउल हसन के बकायदा कान पकड़वाकर उसे हदायत की गई कि आज के बाद अगर उसने कोई बेसुरा राग अलापने की कोशिश की तो नताइज की जिम्मेदारी खुद उसी पर होगी। नाजनीन, हद हो गई भाई, इस तरह हरक पाड़ कर हंसती हो कि एक पूरी गेंद तुम्हारे मुंह में समा सकती है। खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारा ये जिन्नाती किस्म का कहकहा सुना। और ये आज के बाद की वार्निंग कुछ ऐसी शिद्दत इख्तियार कर गई कि लड़कियां बेइख्तियार चीख उठी थीं। आखिर क्या होने वाला है आज के बाद? और जवाबन मीना आपी ने बड़े इत्मीनान से उन्हें बताया था। चंद दिनों बाद नवाब एहसान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, इसीलिए अम्मी की ख्वाहिश है कि आज के बाद हर फर्द हस्बे ज़रूरत अपनी हरकतों सकनात पर गौर कर ले तो ताकि नवाब एहसान पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। लेकिन नवाब साहब हैं कौन, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? सवालात की बौछार ने मीना आपी को अच्छा खासा झिंझला दिया था। सो पहले गुड्डू को नाजनीन की गोद में पटका ठंडी ठार चाय का कप मुंह से लगाकर गटागट चढ़ाया जो रॉकी कई मिनट पहले उन्हें देकर गया था। फिर मेहरीन और सनावर को बेड पर इधर उधर लुढ़काकर अपने लिए जगह बनाई और शुरू हो गई। नवाब हसन हमारे दादा जान की फूफी जात बहन के जिठानी के नवासे हैं। उनकी वालदा एक अरसे से खालिस नवाबी खानदान की तलाश में थी जहां वो अपने लायक फाइक बेटे की शादी कर सकें। इत्तफाक से एक तकरीब में उनकी मुलाकात दादा जान से हो गई और इत्तफाक ही से इस वक्त दादा अपने फुल नवाबी लिबास और नवाबी मूड में थे। नतीजतन नवाब हसन की वालदा ने फौरन ही दिली ख्वाहिश का इजहार किया था और अब वो नवाब एहसान बजाते खुद यहाँ आ रहे हैं शहजादी सनावर को देखने के लिए। क्या? नाजनीन और मेहरीन चिल्ला उठी थी जबकि सनावर सुमुम बुकमुम की तफसीर बन गई थी। दद्दा ने यहाँ आने की इजाजत दे दी? हाँ तो और क्या भाई, वो 21वीं सदी के दद्दा हैं, उनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सनावर के आवाज कुछ देर बाद ही काबू आए। दद्दा का? जी नहीं, उस नवाब हसन का। नाजनीन और मेहरीन के चेहरे पर पहली मुस्कुराहट सनावर को खामखा चिढ़ाई दे रही थी। इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? आजकल तो लड़के लड़कियां शादी से पहले एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और तब कहीं जाकर शादी का फैसला करते हैं। मीना अभी बेनियाजी से कह रही थी। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ और दद्दा को भी नवाब एहसान को इस मकसद के लिए यहाँ आने की इजाजत नहीं देना चाहिए थी। सनावर का मूड बुरी तरह बिगड़ गया था। ओफो भाई, वो तुम्हें अगवा करने नहीं आ रहे, एक नज़र देखेंगे और बस। और अगर एक नज़र देखने के बाद उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? सनावर के गुसीले लहजे पर उन्होंने बनज़र गायर उसके सरापे को देखा था। अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, दूसरा ये कि रिजेक्ट करने का हक तुम्हें भी हासिल है। तुम्हें पसंद ना आए तो बेशक तुम इनकार कर देना। मीना अभी उसके तमाम एतराज़ात को रद्द करते हुए गुड्डू को गोद में लिए बाहर चली गई थी। भाई ये तो कोई बात ना हुई। सनावर उनके पीछे बड़बड़ाते हुए जली बुनी बैठी थी। मदद तलब नजरों से नाजरीन और महीन की तरफ देखा तो उनकी दबी दबी हंसी ने उसे मजीद रुहासा कर दिया था। भाड़ में जाओ तुम लोग। उसे और कुछ नहीं सूझा तो तकिए में मुंह देकर लेट गई थी। नवाब हसन की सवारी बाद बहारी की आमद में चंद रोज बाकी थे, लिहाजा तैयारियां भी उसी लिहाज से जारी थीं। और चूंकि नवाब हसन दद्दा के खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए सबसे ज्यादा घबराए हुए भी वही थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि दुनिया जहान की नवाबी इसे एक घर में समेट लें। और इसी दौरान सब्बी के वालिद यानी इकलौते साहबजादे नवाब फसीउल हसन को भी खूब बुरा भला कहा गया था, जो अपनी 4 अदद साहबजादियों और 1 अदद साहबजादे को उनकी जिम्मेदारी देकर खुद बसिलसिला रोजगार शारजा में मुकीम थे। चूंकि नवाब हसन का कुछ रोज़ा क़याम भी मुतवक्का था, इसीलिए अनेक्सी की मुरम्मत करवाकर बकौल दद्दा थोड़ा थोड़ा बहुत इंतज़ाम कर दिया गया था। और जब ये थोड़ा बहुत इंतज़ाम सब्बी ने देखा तो मारे हैरत की उसकी आंखें फटने के करीब हो गई थीं। घर के दरवाजे पर और खिड़कियों पर हरीली पर्दे से सरसरा रहे थे। लकड़ी का कदीम तर्ज का जहाजी साइज पलंग कमरे के दाईं दीवार के साथ लगा दिया गया था, जो गालबन दादी मरहूमा के जहेज के था। मुनकिश पाइयों वाली कुर्सी, मेज, ईरानी कालीन, गाव तकिए, दद्दा की जाती बंदूक जो बड़ी शान के साथ सामने वाली दीवार पर आवेजा थी। उसके अलावा दद्दा के जाती बक्से से निकले हुए चंद डेकोरेशन पीस थे, जिन्होंने कमरे की फिजा को मजीद नवाबी बना दिया था। और अभी ये थोड़ा बहुत है, रॉकी ने सभी के कानों में सरगोशी की थी। मेरा ख्याल है थोड़ा काट कर बहुत रहने देते हैं। सभी ने जवाबी सरगोशी की थी जो शामते आमाल दद्दा के कानों तक पहुंच गई। और फिर जो दद्दा बोलना शुरू हुए तो उन दोनों को न सिर्फ नवाब खानदान की इकदार और रवायात के बारे में एक तवील लेक्चर सुनना पड़ा, बल्कि इन इकदार के बतदरीज महरूमी पर दद्दा के साथ मिलकर रोना भी पड़ा।
अब क्या बताएं तुम्हें, जब हम नवाब हसन को एक नज़र देखने उनके घर गए थे तो यूं लग रहा था जैसे रियासत में अभी भी उन्हीं की हुक्मरानी है। 20 मुलाजिम आ जा रहे थे। सरे शाम ही दीवान खाने में चिराग जलाए जा रहे थे और तोर खाना भी सैनी में लगाकर सरपोश से ढककर पेश किया गया था। ये सब तो एक तरफ, गुफ्तगू में ऐसा सिलसिला और अंदाजे नशिस्तों बर्खास्त में ऐसा रख रखाव कि वाह सुबहान अल्लाह। उन्हें देखकर इस बात पर बेख्तियार यकीन आने लगा था कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खानदानी रवायात से हटकर जिंदगी गुजारना गुनाह समझते हैं। और सच्ची बात तो ये कि हमें तो शहजादी सनावर की किस्मत पर रश्क आता है, वरना आजकल ऐसे खानदानी नवाब कहाँ। हाँ अलबत्ता कागजी नवाब बहुत। दद्दा इस नवाब खानदान से किस हद तक मुतासिर थे उसका अंदाजा उन्हें इस वक्त हुआ जब दद्दा अपनी स्याह शेरवानी बॉक्स से निकालकर ड्राई क्लीन करवाने को भिजवाई। ये और बात कि ड्राई क्लीन करवाने के बाद जब उन्होंने शेरवानी पहनी और रॉकी को सामने के बटन बंद करने का हुक्म मिला तो हुक्म की तामील में उसे दांतों पसीना आ गया था। ओफो भाई, इधर से खींचो ना। हाँ हाँ थोड़ा जोर लगाओ। अच्छा चलो यूं करते हैं, मैं अपना पेट सुकेड़ता हूँ, तुम फौरन बटन बंद कर देना। हाँ भाई, ये हुई ना बात। दद्दा शेरवानी में पूरी तरह पैक हो जाने पर खासे मसरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब इस हुलिये में वो अपने कमरे से बरामद हुए तो सब्बी ने उन्हें देखते ही एक टांग पर नाचना शुरू कर दिया। दद्दा जी की तोहन तो देखो, जैसे तेल का मटका कोई, देखने में यूं लगता है दफन है इसमें बकरा कोई। और इस बेतुके राग को सुनते ही दद्दा ने जहां उसे बेभाव की सुनाई थी वहां ये ऐलान भी फरमा दिया था कि उन्हें दद्दा जैसा कन टूटा लफ्ज हरगिज पसंद नहीं, लिहाजा वो आज से उन्हें दादा हजूर कहकर पुकारा जाए। अम्मी ने दादा हजूर की तैयारियों का ये आलम देखा तो झट से दादी मरहूमा का गिरारा निकालकर करफ लगने को दे छोड़ा। चांदी का पानदान जो उन्होंने अपनी सास की निशानी के तौर पर संभाल रखा था उसे साफ करवाकर नया नकोर करने के बाद तख्त के ऊपर और उगालदान तख्त के नीचे रखवा दिया। अरे नाजनीन, जरा स्टोर रूम में ढूंढो तो सही, हो सकता है आफ्ताबा और चिलमची भी मिल जाए। उन्होंने बहुत उजलत में नाजनीन को हिदायत दी थी। हैं, आफ्ताब भाई का स्टोर में क्या काम? और अगर उन्हें मालूम हुआ जाए कि आप उनकी चहीती बीवी को चमची कह रही हैं तो वो कितना बुरा महसूस करेंगे। उफ, ये मेरी औलाद। वो सर पर हाथ मारकर रह गईं। फिर आफ्ताबा और चिलमची को भूलकर रॉकी को बाजार भेजकर छालिया, जर्दा, कत्था, चूना, इलायची मंगवाई ताकि पान का मसाला पूरा हो सके। इस काम से फरागत पाते ही उन्होंने घर के अफराद पर तवज्जो देनी शुरू की। मेहरीन, जो घर में छोटी होने का फायदा उठाते हुए हमेशा जीन्स और कुर्ते में मलबूस होती थी, अब चूड़ीदार पजामे और घेरदार फराक के साथ कई गज का दुपट्टा संभालने की कोशिश में हलकान हुई जा रही थी। मीना आपी उर्दू लगत हाथ में लिए स्कील किस्म का अल्फाज रटने की कोशिश में थी ताकि नवाब हसन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, और बकौल नाजनीन सारा इंप्रेशन तो मीना आपी ने ही डाल देना है। रॉकी की घुटनों पर से फटी जीन्स दद्दा ने बजोरे लाठी उतरवाई थी और रॉकी इस अल्ट्रा मॉडर्न लिबास से मरहूम होने पर खासा रंजीदा भी हुआ था, मगर बाद में पजामा और कुर्ता पहने घर के तवील बरामदों में रॉक एंड रोल स्टाइल में घूमता नजर आता था। और बकौल सब्बी बांसुरी पर गिलाफ की अमली तफसीर बना हुआ था। और खुद सब्बी नवाबों की हिस्ट्री जानने के लिए दद्दा की लाइब्रेरी में डेरा जमाए बैठा हुआ था। ले देखकर एक शहजादी सनावर ही रह गई थी जो इस ड्रामे का हिस्सा बनने पर कतन राजी न हो रही थी, और बाकी सबने ये सोचकर उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था कि वक्त पर अम्मी हजूर की बस एक ही घूरी काफी होगी। कोई तीसरी बेल पर गेट खुला था और अंदर से एक सर बरामद हुआ था, और जिस अंदाज से बरामद हुआ था लगता नहीं था कि उसके नीचे एक धड़ भी होगा। जी फरमाइए की आवाज पर नवाब हसन ने पलट कर देखा तो नजर सीधी उस सर पर सजे घोंसला नुमा बालों पर जा पड़ी, और नवाब हसन को यकीन था कि अगर वो इस घोंसले में हाथ डालेंगे तो न सिर्फ चिड़िया फुर से उड़ जाएगी बल्कि हो सकता है कि 2-4 अंडे भी हाथ लग जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने बहुत शाइस्तगी से सलाम किया। रहमतुल्लाह तो पिछले साल अल्लाह को प्यारे हो गए, अलबत्ता बरकत साहब का घर अगली गली में है। बहुत संजीदगी से जवाब दिया गया। हैं जी? हैरत का भरपूर मुजाहिरा हुआ था। हाँ जी, तमानियत का मुजाहिरा उससे भी शानदार था। अजी, हमने आदाब अर्ज किया था, नवाब साहब ने जताया। अच्छा तो इतना अर्ज करना था ना, गोया सारा कसूर उनका ही था। ला हौला वला। देखिए नवाब साहब घर पर तशरीफ रखते हैं तो उन्हें इतला दे दीजिए कि नवाब एहसान आजमुल दौला तशरीफ लाए हैं। अब के बाद चब्बा चब्बा कर खासी वजाहत के साथ कहा गया था। क्या लाए हैं? मुकाबिल का इश्तियाक दीदनी था। लाए कुछ नहीं, हम आए हैं, यानी नवाब हसन आजमुल दौला। कौन से दौला? नवाब साहब ने दोनों हाथ सीने पर बांधकर सरतापा अपने सामने खड़े उस मुलाजिम टाइप बंदे को देखा। मोहतरम, देखने में तो आप सिर्फ बेवकूफ़ लगते हैं, लेकिन दर हकीकत आप पागलपन की इंतहाई स्टेज पर पहुंच चुके हैं। क्या इस घर में आपके सिवा और कोई तीसरा शख्स नहीं जिससे हम मिल सकें? जब्ते जज्बात से नवाब साहब का चेहरा तपते तनूर की तरह हो गया। भाई ऐसे कैसे मिलवा दें? आप अपना तारुफ तो कराएं।
और नवाब साहब का बस नहीं चल रहा था कि उस मुलाजिम को कच्चा चबा जाएं और डकार तक न लें। हम नवाब हसान हैं, उन्होंने हलक फाड़ कर कहा और जवाबन मुलाजिम की आंखें फट गई थीं। क्या? यानी कि आप? आइए आइए, तशरीफ रंजा, मेरा मतलब है कदम फरमाइए। ओहो, रटे रटाए जुमलों का सत्यानाश हो गया था। हम अभी नवाब साहब को इतला करते हैं। मुलाजिम भगदड़ पीछे को भागा था और नवाब हसान अपने आप को पुरस्कून करने के बाद अंदर दाखिल हो गए थे। सुर्ख बजरी की रोश के अतराफ में बना बाग निहायत वसी और अरीज था, जिसमें अनवाع अक़साम के फलदार और फूलदार दरख्त थे, मगर नवाब हसान की मरकज़े निगाह वो नाजुक अंदाम हसीना ठहरी थी जो हाथ में पाइप पकड़े गुलाब की क्यारियों को पानी दे रही थी। मालूम नहीं सरसब्ज़ो शादाब माहौल का असर था या इस नाजुक कली के दीदार का कि नवाब साहब की बांछें खुद ब खुद खिल गई थीं। घनी स्याह दराज जुल्फों पर नजरें जमाए वो चंद कदम आगे बढ़े थे। आदाब अर्ज़ है मोहतरमा। खुशगलू त्योर की मौजूदगी के बावजूद वो पुरयकीन थे कि उनकी आवाज़ बहुत भूंडी और भयानक नहीं है, मगर फिर भी आदाब के जोन में वो मोहतरमा इस बुरी तरह उछल कर उनकी तरफ पलटी थी कि पानी की मोटी सी धार उन्हें सरतापा शराबूर कर गई थी। और वो मोहतरमा पहले घबराई, सटपटाई और फिर बेख्तियार हंस दी थी। वो नवाब साहब हंसी की इस नरम फुहार में भीगते चले गए थे। वाह, पजीराई का ये अंदाज, सुबहान अल्लाह। उन्होंने दोनों हाथों से आंखों में भरा पानी साफ करके दोबारा मुतवज्जा होना चाहा, मगर तब तक मंजर बदल चुका था, बल्कि चिरागों में रोशनी ना थी, यानी वो मोहतरमा वहां से गायब हो चुकी थी। वो सर दाब भरते हुए आगे बढ़ गए। रविश के इख्तिताम पर मेहराबी दरवाज़ों वाला वसीअ और अरीज़ बरामदा उनके सामने था, जहाँ तख्त पर बिछी सफ़ेद चादर पर मैरून तकिए अजब बहार दिखला रहे थे। उन्होंने चंद लम्हे रुककर इधर उधर देखा, फिर सामने का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। ये गालबन ड्राइंग रूम था जो कदीम तर्ज के भारी सोफों से सजा हुआ था। नवाब एहसान ने तायराना नज़र इस हाल नुमा कमरे पर डाली और अगले ही लम्हे बुरी तरह चौंक गए। कमरे के ऐन वस्त में एक अदद मीनार बना हुआ था। वो कुछ इस तरह के एक बड़ी मेज़ के ऊपर एक छोटी मेज़, इस छोटी मेज़ के ऊपर एक कुर्सी और इस कुर्सी के ऊपर। नवाब हसान की बाँछें एक बार फिर खिल गईं। नाजुक लचकीली डाल की मानिंद वो लड़की दाएं बाएं आगे पीछे होते हुए छत का पंखा साफ कर रही थी। उन्होंने उसे पुकारने के लिए लब वाह किए, मगर अगले ही लम्हे कुछ सोच कर रह गए। अगर ये भी खौफजदा होकर उछल पड़ी तो यकीनन जमीन पर आ गिरेंगी। चोट वोट लग गई तो? नवाब साहब का दिल सिनफे नाजुक के मामले में कुछ ज्यादा ही नाजुक था। सो झट से दोनों आस्तीनें छुड़ाई, बाजू वाह किए और इस अंदाज से खड़े हुए कि इधर वो आवाज निकालेंगे, उधर हसीना तड़ से उनके बाजुओं में आ गिरेगी। अफसानों में तो कुछ ऐसा ही पड़ा था। उन्होंने तगड़े अंदाज में खुनकार कर अपनी आमद की इतला दी थी। आ गए हो कमबख्त, अव्वल दर्जे के ढीठ और परले दर्जे के कमीने हो तुम। कहाँ मरखप गए थे? जी तो चाहता है जूता लेकर ऐसी धनाई करूं कि। लड़की फुल वॉल्यूम से बोलते हुए पलटी तो होंक बने नवाब साहब को देखकर चिल्ला उठी। कौन है आप? अंदर कैसे आए? क्या कर रहे हैं यहाँ? एकदम सारे सवाल करने के बाद उस लड़की ने कुर्सी के ऊपर से बराहे रास्त छलांग लगाई सोफे पर और अगला जंप लगाने के बाद ऐन उनके सामने आ खड़ी हुई। मुंह बंद कर लीजिए, खौफ आ रहा है। लड़की की बात पर नवाब साहब ने सटपटा कर पहले मुंह बंद किया और फिर फौरन अपने बाजू समेट लिए थे। ला हौला वला, यानी कि इंतहाई गुस्ताख मुलाजमा है आप। चंद लम्हे बाद उन्हें एहसास हुआ कि मुलाजमा उनकी शान में गुस्ताखी कर चुकी है। हद हो गई, यानी कि इस घर के मुलाजमीन को नवाबों से बात करने की तमीज भी नहीं। सामने खड़ी लड़की जो मुलाजमा के लकब पर गैज़ो गजब का शिकार हुई जा रही थी, अब तंजिया अंदाज में उन्हें देख रही थी। ओहो, तो आप नवाब हैं? उसने खासे महजूज अंदाज में नवाब साहब को देखा, जिनकी जुल्फों से अभी भी कतरा कतरा पानी टपक रहा था। जी हाँ, हम हैं नवाब हसान आजमुल दौला वल्द मेहताब बुल दौला वल्द मेराजुल दौला वल्द दौला ही दौला। लड़की की जुबान दोबारा फिसली थी। कुछ नहीं जी। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आप नवाब हसान। क्या नवाब हसान? ओह नो। लड़की की हालत सदमे से या शायद हैरत से गैर हुई थी और इसके साथ ही वो फुल स्पीड से उनकी तरफ दौड़ी थी। अरे अरे, ये क्या करने जा रही हैं आप? नवाब हसान बौखला कर रह गए थे, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझते, लड़की आंधी तूफान की मानिंद उनके करीब से गुजरकर गड़ाब से एक दरवाजे में जा घुसी थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है? नवाब साहब हकीकतन परेशान होकर रह गए थे। मीना आपी, मीना आपी, वो आ गए हैं। सनावर बेतरतीब सांसों के साथ तड़ से मीना आपी के सामने बेड पर गिर गई थी। कौन? गुड्डू के पापा? गुड्डू के अब्बा किसी बदरू की तरह उनके हिसाब पर सवार रहते थे, सो पहला ख्याल ही उनका आया था। नहीं, वो आए हैं। घबराहट उस पर बुरी तरह सवार थी। ओ, क्या बकरे आए हैं? करीबी सोफे पर बैठा सब्बी फरते मुसर्रत से बुरी तरह उछल पड़ा कि अभी सुबह ही तो उसने दद्दा से कुर्बानी के बकरे मंगवाने की फरमाइश की थी। ओ खुदाया, तुम लोगों की समझ कहाँ चली गई है कि नवाब हसान आए हैं? सनावर ने रूहान से लहजे में कहा।
नहीं, सभी ने चारों उंगलियां मुंह में दाब ली। लगता है तैर कर आए हैं। सनावर को उनका भीगा भीगा हुलिया याद आया, मगर मीना अभी उसकी तरफ मुतवज्जा हुए बगैर सभी की तरफ पलटी थी। सभी, तुम जाकर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, बल्कि पहले दद्दा को इत्तला करो। लेकिन रहने दो, मैं खुद अम्मी को बताती हूँ। वो बौखलाकर बाहर की तरफ लपकी। मम, मैं कोई नहीं जा रहा। अरे इधर मरो। मीना आपी ने उसे खिसकता देख बाजू से पकड़ा और घसीट कर पूरी कुव्वत से ड्राइंग रूम में धक्का दे दिया। और जब सभी लड़खड़ाता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो पहले ही मरहले पर कालीन में पाँव फंस गया और वो नवाब साहब के सामने इस तरह चारों शाने चित हुआ था कि दोनों हाथ सलीम शाही खुस्सों पर जमे थे। खुश आमदीद कहने का ये अंदाज हमें पसंद आया। नवाब हसान के लहजे और चेहरे पर तहसीन के तासुरात छलक रहे थे। क्या आप समंदरी मखलूक के नवाब हैं? खासी संजीदगी से सवाल किया गया था। खूब, बहुत खूब, आपने हमें पहचान लिया। इसका मतलब है हम अपने आवाम में खासे मकबूल हैं। खासा कारीवार किया गया था, सब भी तिल मिलाकर रह गया। तभी दरवाजा खोलकर रॉकी अंदर दाखिल हुआ तो सभी गरज उठा। कहाँ मर गए थे? मरे कहाँ थे, दद्दा हजूर को पैक कर रहे थे। रॉकी ने चमक कर जवाब दिया। हैं, क्या इस उम्र में भी वो? नवाब साहब ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। सभी खज्जल होकर रह गया। जी नहीं, ये इस पैकिंग की बात नहीं कर रहा। सभी ने फौरन वजाहत की। एन उसी वक्त दादा हजूर शेरवानी जेबतन किए कमरे में दाखिल हुए। तब हसान को पैकिंग का मफहूम मालूम हो गया था। दादा हजूर के पीछे पीछे हवास बागता सी मीना आपी चली आ रही थी। उनके पीछे खुसर फुसर करती नाजरीन और मेहरीन थी। नाजनीन और मेहरीन थी। और सबसे आखिर में दादी मरहूमा के गरारे में मलबूस अम्मी हजूर झंझलाई सी ठोकरें खाती आ रही थी। दादा हजूर और अम्मी हजूर खासे पुरतपाक अंदाज में नवाब हसान से मिले थे। बाकी लोगों को देख उनके चेहरे पर सवालिया अंदाज का जायजा लेते ही सभी ने तारुफ का फरीजा संभाल लिया था। ये मीनाल हैं, हमारी मीना आपी। अपनी ससुराल में खासी खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं, मगर कभी कभी हमें बदहाल करने यहाँ चली जाती हैं। इनके बाद शहजादी सनावर अफरा सियाब का नंबर आता है। शहजादी सनावर नजर नहीं आ रही। नवाब हसान के लहजे में छुपा इश्तियाक और तजस्सुस एकदम आया हुआ, जिसे महसूस करने के बावजूद दद्दा ने नजरअंदाज कर दिया था। सभी ने चौंक कर टेढ़ी आंख से उन्हें देखा था, जबकि नाज़नीन और मेहरीन के होंठ मुस्कुराहट के अंदाज में फैल गए थे। वो आपको नजर भी नहीं आ सकती। क्यों? सभी के इत्मीनान पर नवाब हसान चौंके। इसीलिए कि वो इस वक्त कमरे में मौजूद ही नहीं। नवाब हसान के लटके मुंह को देखकर खासी खुशी महसूस करते हुए सभी नाज़नीन की तरफ पलटा। और ये है मोहतरमा नाज़रीन अफरा सियाब। नवाब साहब ने बगौर देखा। ये वही मोहतरमा थीं जिनकी बदौलत वो इस वक्त भीगे बिल्ले बने खड़े थे। इनके बाद माँ बदौलत नवाब सबीउल हसन अफरा सियाब का नंबर आता है। और ये है मोहतरमा मेहरीन अफरा सियाब। और इस घर में जो मुख्तलिफ इकसाम की बिल्लियाँ और खरगोश आपको नजर आएंगे, वो इन्हीं मोहतरमा का कारनामा है। सिब्बी तारुफ का मरहला खत्म होने पर खासा मसरूर था जब किसी ने जोर से इसके पहलू में चुटकी काटी। क्या है? वो भुन्नाकर रॉकी की तरफ पलटा। मेरा तारुफ, वो मिनमिनाया था। सब भी उसे घूरते हुए दोबारा नवाब साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। ये अल्लाह रखा है, मगर वाज़ेह रहे कि 21वीं सदी का लिहाज करते हुए ये खुद को रॉकी कहलवाना पसंद करते हैं। जब ये मोहतरम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वालदा मोहतरमा इनकी शक्ल देखते ही दारी फानी से कूच कर गईं। हमारी अम्मी हजूर गांव से कूच फरमाते वक्त इन्हें अपने साथ ले आई थी। तब से अब तक ये हम पर किसी सजा की तरह मुसल्लत हैं। पॉप म्यूजिक पसंद है, इसलिए अक्सर पाप करते नजर आते हैं। क्या भूख लगने पर रोटी नहीं खाते? नवाब साहब बड़े गौर से रॉकी को देख रहे थे। सभी ने उनकी नजरों के ताक़ुब में देखा तो दांत पीस कर रह गए। मौसूफ झेंपने का मुजाहिरा करते हुए अपने नए नकोर कुर्ते का दामन आधे से ज्यादा चबा चुके थे। और रॉकी भाई, नवाब साहब को मर्दान खाने में ले चलो ताकि ये ताज़ा दम हो सकें। और मीना, आप फौरन इनके खाने का बंदोबस्त करें। दादा हसूर ने नवाब साहब को चाय का आखिरी घूंट भरते देख हदायत जारी की थी। आइए, मैं आपको मुर्दा खाने, मेरा मतलब है मुर्दान खाने ले चलूं। रॉकी निहायत आजिजी से कहता हुआ उन्हें अपनी मैयत में लेकर अनेक्सी की तरफ चल दिया था। हाय नहीं, क्या वाकई उन्होंने तुम्हें मुलाजमा समझा? नाजनीन तरहुम आमेज नजरों से सनावर को देख रही थी। जाहिर है, पीली शलवार, सुर्ख कमीज, सब्ज दुपट्टे और बिखरे बिखरे उजड़े हुए गर्द आलूद बालों समेत वो मुझे कोई शहजादी तो समझने से रहे। सनावर ने निहायत इत्मीनान से गोल्डन ब्राउन प्याज का जायजा लिया और फिर उनमें चिकन डालकर भूनने लगी। और रही सही कसर हाथ में पकड़े झाड़न ने पूरी कर दी होगी। मेहरीन ने तंज किया। पाँव में जूता भी नहीं था मोहतरमा के। सब भी जाने कब किचन में चला आया था। यानी कि हमारी नाक कटवाने में कोई कसर न छोड़ी थी। और अगर नवाब हसान को मालूम हो जाता कि ये है मोहतरमा साहबजादी सनावर अफरा सियाब, तो वहीं तट से गिरकर बेहोश हो जाते बेचारे। जी, अगर वो मैले पंखे और कोनों खुदरों में लगे जाले देकर नाक बो झड़ाते तब आपकी नाक सलामत रहती ना। उसने पाव भर टमाटर चिकन में शामिल करते हुए कदरे जल कर कहा। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नाज़नीन ने फ्रूट राइफल बनाते हुए सर उठाया। ये कोई नई बात नहीं, आपको अक्सर बातों की समझ नहीं आती। सब भी बचे कुचे फ्रूट पर हाथ साफ कर रहा था। बको नहीं। नाज़नीन तेजदार छुरी उसकी आंखों के सामने लहराते हुए सनावर की तरफ मुतवज्जा हुई।
हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि नवाब साहब ने खत में अपने आने की तारीख 16 लिखी थी, तो फिर आज यानी 12 तारीख को क्यों कर टपक पड़े? इसीलिए कि उन्होंने खत में भी अपने टपकने की तारीख 12 ही लिखी थी। जवाब सनावर की बजाय सब्बी की तरफ से आया था। चुनाचे तीनों काम छोड़कर उसकी तरफ घूम गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि उनका खत मीना आपी ने वसूल किया था और उन्होंने ही दादा हजूर को पढ़ के सुनाया था। नवाब साहब ने तारीख तो 12 ही लिखी थी, मगर उर्दू हिंसों में मीना आपी को हमेशा की तरह मुगालता हुआ और वो 12 को 16 के हिस्से में बदल गईं। और चूंकि उन्हें खुद पर तालीम याफ्ता होने का गुमान है, सो उन्होंने किसी और को यह खत दिखाने की बजाय दादा हजूर की दराज में बंद कर दिया था। इसीलिए तो सारी गड़बड़ हो गई। वैसे सनावर, तुमने तो उन्हें देख लिया था ना? सच सच बताओ, कैसे लगे? मेहरीन उसके कान में घुसते हुए शरारत से पूछने लगी। काफी हद तक मेंढक से मुशाबा थे। सनावर की बात पर नाजनीन की हंसी छूट गई। वो सारा कारनामा तो नाजनीन की बच्ची का था, जबकि हकीकत में तो अच्छे खासे स्मार्ट हैं वो। मेहरीन दोबारा सलाद की तरफ मुतवज्जा होते हुए बोली थी। तभी मीना अपनी खासी उजलत में किचन में दाखिल हुई। कहाँ है सनावर? ओफो, एक तो ये इतना बड़ा दुपट्टा भी किसी हिसाब से कम नहीं। वो खासी झिंझला गई थी। तेजी से अंदर आते हुए दुपट्टा पीछे रह गया था और खुद वो आगे बढ़ाई थी। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए उन्होंने कलफ लगे दुपट्टे को आखिरी कोने से पकड़कर घसीटा और बेजारी से गर्दन के गिर 4 बल देकर उसे समेटा। ऊपर से इतनी गाड़ी उर्दू बोल बोल कर मुंह दुखने लगा है मेरा। उन्होंने यूं ही सिंक में रखे बर्तनों की उठक पटक की। और ये तुम किचन में गुस्से क्या कर रहे हो? जाकर कंपनी दो नवाब साहब को। उन्होंने सभी को डांट कर भगाया और फिर सनावर की तरफ मुतवज्जा हुई। 100% यकीन था कि मोहतरमा सर झाड़ मुंह फाड़ घूम रही होंगी। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। स्काई ब्लू कुर्ता पजामा पहन लो, मैंने इस्त्री कर दी है। ये क्या बात हुई मीना आपी? कोई मुनफरिद सा लिबास निकालती ना। कुर्ता पजामा तो रॉकी ने भी पहन रखा है। मेहरीन को ये मुमासरत एक आंख ना भाई थी। तो क्या रॉकी कुर्ता पजामा पहनकर शहजादी सनावर लगने लगी है, या सनावर कुर्ता पजामा पहनकर रॉकी बन जाएगी? हद हो गई यानी के। वो जलकर कहती हुई आगे बढ़ गई, मगर फिर पलट आई। और हाँ, बालों को यूं ही मत छोड़ देना जैसे अभी भी इनमें बम फोड़ा गया हो, बल्कि बालों की सीधी मांग निकालकर परांदा डाल लो। परांदा? सनावर हक्का बक्का रह गई, जबकि नाजनीन अपने हाथों से उसकी पौनी नापने लगी। नामुमकिन मीना आपी। नाजनीन ने मायूसी के अंदाज में नफी में सर हिलाया। बिलफर्ज हमने मुशक्कत कर भी ली तो ऐन मुमकिन है कि इधर सनावर नवाब साहब के सामने हाजिरी दे, उधर परांदा कदमों में। नाजनीन ने सनावर को डरा दिया था। बेवकूफ, नकली बालों की चुटिया मेरे कमरे में पड़ी है, परांदा उसमें डाल दो और सनावर के हाथ में पकड़ा दो। मेहरीन ने फट फट से फिकरा चढ़ दिया। शट अप। क्लिप या बैंड्स वगैरह लगाकर उसके बालों में सेट कर दो। उनकी सोची समझी स्कीम सुनकर वो रोहांसी हो गई थी। क्या तमाशा है आपी? ये सब करना जरूरी है क्या? खबरदार जो ज्यादा बोलने की कोशिश की। ऐसे मामलात में बच्चियां अपनी राय नहीं देती। जी हाँ, बच्चियां तो जैसे अभी फीडर पीती पीती है ना। वो चमचा पटक कर कुर्सी पर जा बैठी। ओ हाँ, खाने तक तैयार हो जाना, खाना सब लोग इकट्ठे खाएंगे। सब लोग पर जोर देकर वो किचन से बाहर निकल गई थी और अभी सनावर दरवाजे को घूर रही थी जब वो दोबारा नमूदार हुई। और हाँ, फॉर गॉड सेक आपी, अब बस करें। उसकी आंखें सचमुच भर आईं। बस आखिरी बात वो ये कहकर दुपट्टा सर से बस आखिरी बात वो ये कि दुपट्टा सर से सिरकने ना पाए। एक तो खिलाफे तहजीब समझा जाएगा और दूसरा। वो जुमला अधूरा छोड़कर बाहर ही निकल गई। यार पकड़ना, मैं बेहोश हो रही हूँ। वो शदीद सदमे के जेर असर लहराती हुई किचन टेबल पर गिर गई थी, जबकि मेहरीन और नाजनीन के छत फाड़ कह कहे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। जनाब किबला व काबा मोहतरम नवाब एहसान खुली किताब बंद करके एक तरफ रखते हुए उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। एक बात तो बताइए मोहतरमी। हैं नवाब साहब, क्या आपको हमारे मुज़क्कर होने पर कोई शक है? रॉकी मोहतरमी के लफ्ज़ पर तड़प उठा था। अरे अरे नहीं, अल्लाह रखा। उन्होंने अपनी दांत में उसे राम करने की कोशिश की थी, मगर वो यूं उछला गोया बिच्छू ने डंक मारा हो। नवाब साहब, हद करते हैं आप भी। क्या सिर्फ हमें ही अल्लाह ने रखा हुआ है? उसके शिकायती लहजे पर नवाब साहब सर झुकाकर रह गए थे। देखिए, हम तो सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे थे कि क्या शहजादी सनावर भी खाने पर मौजूद होंगी। उनके खोजते लहजे पर दुनिया जहाँ की बेनियाजी रॉकी के चेहरे पर आन टपकी थी। मालूम नहीं। चले इतना तो बता दें, वो है कैसी? खासी खूंखार हैं। क्या मतलब? क्या काटती हैं? वो कदरे खौफजदा हुए। मैंने ये तो नहीं कहा। रॉकी का अंदाज मुकरने वाला था। अच्छा, वैसे दिखने में कैसी हैं? लहजे में इश्तियाक की फरावानी थी। मालूम नहीं। रॉकी ने कंधे उचकाकर पढ़ाया हुआ सबक दोहराया और उसकी इस साफ धांधली पर नवाब साहब ने कड़े तेवरों से उसे घूरा था। खाना दस्तरख्वां पर लगाया जा चुका था। नवाब एहसान ने बैठते हुए तमाम अफराद का जायजा लिया था, मगर निगाहें गोहरे मकसूद को पाने में नाकाम रही थीं। वो दिल ही दिल में अफसोस करते हुए अपने ख्यालात में खो गए। चूँकि उस वक्त जब मीना आपी कह रही थी, सनावर तुम यहाँ आ जाओ, उन्होंने हसान के सामने वाली नशिस्त उसके लिए मुंतखब की थी। नवाब साहब ने फौरन सर उठाकर देखा और फिर तवील सांस लेकर रह गए।
बड़ा सा दुपट्टा कुछ इस अंदाज से ओढ़ा गया था कि शटल कॉक बुरके का मुतबादिल लग रहा था। वो मामूली सी झलक भी ना देख सके। सोने पे सुहागा ये कि मीना आपी की पेशकश को मुस्तरद करती हुई दादा हजूर के पहलू में जा बैठी थी और फिर खाने के दौरान उन्होंने सरतोड़ कोशिश की थी उसके दीदार की। कभी गिलास उठाने के बहाने आगे हुए, कभी कोई डिश लेते हुए आंखों को शरकन गरबन हरकत दी, कभी दाएं किसके कभी बाएं। और साकित इस वक्त हुए जब अपने सामने बैठे सब्बी के चेहरे पर शदीद सी मुस्कुराहट देखी। हसान, लीजिए ना, सिंगापुरी चिकन सनावर ने बनाया है। मीना आपी उनकी खातिरदारी में मसरूफ थी। ये भी लीजिए ना, सनावर ने बनाए हैं। सभी ने माल्टों की टोकरी उनकी तरफ बढ़ाई। माशाल्लाह, क्या कुछ बना लेती हैं मौसूफा, उन्होंने हल्का सा तंज किया। बेवकूफ़ बहुत अच्छा बना लेती हैं, और उल्लू बनाने में तो उनका कोई सानी नहीं। इससे पहले कि सभी उसकी मजीद खूबियां गिनवाता, मीना आपी की कोहनी जोरदार तरीके से उसकी पसलियों में लगी थी। वो गालबन इस हमले के लिए तैयार नहीं था, इसलिए टुकड़ी एक झटके से उसके हाथ से छूटी थी। एक माल्टा उड़ता हुआ नवाब हसान की प्लेट में पहुंचा और नतीजे के तौर पर सिंगापुरी चिकन उड़कर नवाब की गोद में जा बैठा था। टोकरी गालबन जग पर लगी थी, इसलिए पानी भल भल करता हुआ दादा हजूर की तरफ जा रहा था। ओफो सभी, तुम्हें कब अकल आएगी? दादा के पहलू से निस्वानी आवाज उभरी तो नवाब साहब गोद में पड़े चिकन को भूल उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सनावर फौरी तौर पर अपनी जगह से उठी थी और अभी हसान की मुतजस्सिस निगाहें लंबी चोटी और बरामदे का निजारा ही कर सकी थी कि दादा हसूर का वसी और अरीज वजूद एक बार फिर उनकी निगाह के रास्ते में हाइल हो गया था। ओ गॉड, उन्होंने बेचारगी और बेबसी के एहसास से मगलूब होकर गर्दन कंधे पर डाल दी थी। थैंक गॉड, हमारा प्लान कामयाब रहा, वरना ऐन मुमकिन था कि नवाब हसान सनावर को देखकर कहते, माफ़ कीजिएगा, हमें मुलाजमाओं के साथ खाने की आदत नहीं है। नाजनीन के कहने पर बाकी सब मुस्कुरा दिए, जबकि मीना अपनी नाराजगी के इजहार के तौर पर महफिल से वॉकआउट कर गई थी। वैसे सनावर बाजी, जितनी लंबी आपकी चुटिया थी ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था झूले लेने को। रॉकी दान निकालते हुए बोल रहा था। वो सब इस वक्त बरामदे में मौजूद थे। हसान नक्सी में तशरीफ ले जा चुके थे। सनावर किसी तौर भी नवाब साहब को अपना चेहरा दिखाने पर राजी नहीं हुई थी। बाकी सबको मजबूरन उसका साथ देना पड़ा था, और अब तो ये खौफ था कि अगर जो उन्होंने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही पहले दिन वाली गुस्ताख मुलाजमा है, तो जाने उनका रद्द-ए-अमल क्या होता। इसीलिए वो सब चेहरा ना दिखाने वाली तरकीब की कामयाबी पर खासे खुश थे, बल्कि अम्मी और मीना आपी के भरपूर डांट भी उन्हें बदमजा नहीं कर पाई थी। इस वक्त बरामदे में बराजमान वो सब खुशगपियों में मसरूफ थे जब दद्दा चले आए, जो अपनी शेरवानी के बगैर खासे गैर मुतमईन लग रहे थे। क्यों मियाँ साहबजादे, आपको क्या हुआ? उन्होंने आते ही सब्बी की कमर पर छड़ी बजाई, जो खिलाफ आदत खामोशी से तख्त पर औंधा पड़ा था। दद्दा, इन्हें बकरेरिया हुआ है, रॉकी की दिल दहला देने वाले अंदाज में कहता हुआ उनके नजदीक चला आया। ये बकरेर क्या होता है? दद्दा की मालूमात इस बारे में इंतहाई नाकिस थी। इंतहाई खौफनाक बीमारी है जी, बकर ईद के नजदीक तो ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। रॉकी, तुम बीमारियां भी अपनी जैसे ही ढूंढते हो, जिनका न सर होता है न पैर, दद्दा ने खौफजदा अंदाज में कहा था। रॉकी फौरन से पेशतर अपने पैर और सर ढूंढने लगा। सब्बी मियाँ, क्या मसला है भाई, जरा चेहरा तो दिखाओ। उन्होंने सब्बी को सीधा किया। दादा हजूर, हमें नहीं पता, हमें बकरा चाहिए। दादा को माइल इल्तफात पाकर सब्बी ने झट फरमाइश कर दी थी। माशाल्लाह, बकरा मांग रहे हो या चॉकलेट? अगर आपने इस दफा चॉकलेट की कुर्बानी देनी है तो वही ले दें, मैं उसके गले में रस्सी बांधकर पूरी कॉलोनी में घुमा डालूंगा। कम से कम लड़के छेड़ने से तो बाज आ जाएंगे। हैं तो क्या इससे पहले लड़के तुम्हें छेड़ते हैं? जी हाँ, अभी कल ही तो एक लड़का कह रहा था कि नवाब सबीउल हसन साहब, बकरा खरीदने की इस्तात नहीं रही तो मुर्गे के गले में ही रस्सी डाल लें, नवाब खानदान की इज्जत रह जाएगी। सभी ने दद्दा के नवाबी खून को जोश दिलाया। इंतहाई नामाकूल लोग बसते हैं यहाँ। हमारा तो ख्याल था कि ईद से 1-2 रोज कबल मंगवा लिए जाएंगे। अब देखो ना, 15 दिन बाकी हैं ईद में, और इतने दिन कौन देखभाल करेगा नाजवर की? दद्दा, जानवर होगा ये, कौन देखभाल करेगा जानवर की? दादा हजूर, मैं करूंगा देखभाल, आखिर इतने अरसे से सब्बी मियाँ की देखभाल भी तो मैं ही कर रहा हूँ। रॉकी ने फौरन अपनी खिदमत पेश की थी। ओफो, वो तो ठीक है, लेकिन बकरा कौन लाएगा? लेकर भी मैं ही आऊंगा, बकरे ताड़ने में मैं खासा माहिर हूँ। राकी गर्दन अकड़ा कर बोला था। तुम बकरे ताड़ने में ही माहिर हो सकते हो? सभी की बात पर उसका मुंह बन गया। अच्छा चलो ठीक है। चंद लम्हे की शशोपंच के बाद दद्दा ने इजाजत के साथ साथ हजारों नसीहतें और पैसे भी उनके हवाले कर दिए थे। दद्दा, आप क्या सोच रहे हैं? दद्दा की पुरसोच नजरें रॉकी और सभी की ताकों में दरवाजे तक जाते देख सनावर ने बेख्तियार पूछ लिया था। सोच रहा हूँ, अगर बकरा भी बंदा ताड़ने में माहिर हुआ फिर? उनके बेहद संजीदगी से कहने पर सनावर भी उतनी ही संजीदगी से उन्हें देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंसती थी। बकरा आ गया?
बकरे के इंतजार में दोपहर से शाम हो गई थी, तब कहीं जाकर खामोशी और सोए हुए माहौल में मेहरीन की चहचहाती आवाज उभरी थी। किचन में काम करती सनावर उसकी आवाज सुन एक झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ए पहले ये मसाला पीसो। अम्मी ने भागते चोर की लंगोटी के मुताबिक उसका परांठा खींचा था, मगर अगले ही पल परांठा चुटिया समेत उनके हाथ में था और सनावर किचन से बाहर वो लॉन में पहुंची तो सभी बकरे की रस्सी थामे गर्दन कड़ाई सीना फुलाए खड़ा था। सनावर, देखो कितना खूबसूरत बकरा है। बकरा कौन सा है? उसने आते ही एक नजर बकरे पर और दूसरी सब्बी पर डाली थी, मगर इससे पहले कि बकरे की निशानदेही की जाती मीना भागती चली आई थी। कहाँ है बकरा? एनेक्सी के टेरेस पर। क्या? इतने सारे सवाल या निशान क्यों आ गए यहाँ? मुझे लगता है कुछ मिसिंग हो गया इसमें से। चले, दूसरा बकरा कहाँ है? अम्मी हजूर, क्या आप वाकई इतनी मासूम है जितनी इस वक्त नजर आ रही हैं? सभी ने बगौर उनके चेहरे का जायजा लिया। क्या मतलब? अम्मी के तेवर बिगड़ने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगता था, इसलिए सभी ने फौरन पैंतरा बदल लिया। अम्मी हजूर, छोड़िए दूसरे बकरे को, ये अपना शहजादा बकरों से कम तो नहीं। माशाल्लाह, कदो कामत में बिल्कुल रॉकी जैसा है। सभी को बकरे की मदाह में उससे बेहतर तशबीह ना सूझी थी। गोया सवाल ये पैदा होता है कि बकरा रॉकी जैसा है या रॉकी बकरे जैसा है। मेहरीन ने हल तलब मसला उठाया तो सभी अपनी गौर फिक्र में लग गए, जिसमें सरे फहरिस्त रॉकी था। मीना अभी ने सनावर के कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खोलकर अंदर झांका। गालबन कोई फिल्म चल रही थी और सनावर फिल्म के साथ साथ मजे से चिप्स उड़ा रही थी। यहाँ ऐश का आलम है और हम हैं कि रातों की नींद गवा बैठे हैं। वो बड़बड़ाती हुई अंदर दाखिल हो गई। सनावर, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। क्या कोई काम था? उसने टीवी पर से नजरें हटाकर उन्हें देखा। हाँ, काम ही था। वो दरअसल में नाजनीन अम्मी के साथ किचन में मसरूफ है। मेहरीन अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी और रॉकी को मैंने दुपट्टा रंगवाने बाजार भेजा है। इस लंबी चौड़ी तमहीद पर सनावर ने खासी हैरत से उन्हें देखा। तो ले देकर अब तुम ही रह गई हो, इसीलिए तुम जाकर एनेक्सी की टेस्टिंग कराओ। उन्होंने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को आम बनाने की कोशिश की थी। गोया पक्का इंतजाम करके आई हैं। वो तवील सांस लेकर रह गई। नवाब साहब वही मौजूद हैं? नहीं भाई, वो कुछ देर कबल बाहर गए हैं। प्लीज तुम थोड़ी सी झाड़ पूछ कर आओ ना। 2 रोज से उसका कमरा साफ नहीं किया गया। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? बस 2 मिनट का काम है। आर यू श्योर आपी कि वो बाहर गए हुए हैं? उसने मशकूक अंदाज में उन्हें देखा। लो भला, मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो बुरा मना गई। मैं तो खुद ये काम कराती, बस वो गुड्डू के उठने का टाइम हो गया है इसीलिए। अच्छा आपी, जा रही हूँ। वो महज उनकी नाराजगी के ख्याल से उठ खड़ी हुई। अगरचा मीना आपी ने नवाब हसन की गैर मौजूदगी का पूरा यकीन दिलाया था, मगर इसके बावजूद सनावर को कुछ शक सा था। इसीलिए दबे पांव कमरे के दरवाजे तक आकर उसने की होल से अंदर झांका था। कान लगाकर आहट सुनने की कोशिश भी की थी और फिर चोरी चोरी गर्दन दरवाजे से अंदर डालकर आंखों को सर्च लाइट की तरह हरकत देते हुए पूरे कमरे का जायजा भी लिया था और हर तरह का इत्मीनान करने के बाद ही वो कमरे में दाखिल हुई थी। उसकी पहली नज़र साइड टेबल पर फ्रेम शुदा तस्वीर पर पड़ी थी। माशाल्लाह, सामान तो इस तरह सेट कर रखा है गोया घर दामाद बनने का इरादा हो। उसने एक नज़र चारों तरफ दौड़ाकर फ्रेम उठा लिया था। हाथ में राइफल लिए एक मुर्दा शेर के ऊपर पाँव रखकर तस्वीर बनाई गई थी। ओह, नवाब कम कसाब ज्यादा लग रहे हैं। उसने सर झटक तस्वीर वापस रख दी। कमरे में सफाई की कोई ज्यादा जरूरत तो महसूस नहीं हो रही थी। बस चंद किताबें बेड पर बिखरी पड़ी थीं, उन्हें समेटकर मेज पर रखा। बेड कवर झटक कर दोबारा बिछाने के बाद पलटी तो नजर जुराबों पर पड़ी। एक जुराब बेड के करीब पड़ी थी। दूसरी की तलाशी बिसियार के बाद बैरूनी दरवाजे के करीब से मिली थी। कहने को नवाब, मगर आदतें घिसियारों जैसी हैं। उसे अम्मी का तकिया कलाम याद आ गया जो अक्सर ऐसे मौक़ों पर सब्बी के लिए वो बोला करती थीं। उसने एक चुटकी में जुराबें पकड़ी और दूसरी में अपनी नाक। गालबन इनके यहाँ जुराबें धोने का रवाज नहीं। उसने जुराबें जूतों में रखने की बजाय डस्टबिन में फेंकी और हाथ झाड़ने लगी। तभी हल्का सा खटका हुआ तो वो चौंक सी गई और अगले ही लम्हे बाथरूम का दरवाजा खुलते देख उसका दिल उछल कर हलक में आ गया था। उई अम्मी! वो एक लम्हे को अपनी जगह साकित हुई और फिर करंट खाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ लपकी। रुक जाओ! भारी गूंजदार आवाज रोब और दबदबे से आरास्ता थी। सनावर दरवाजा का पट थामे जहां की तहां रह गई। सांस न जाने कहाँ अटका था कि कोशिश के बावजूद न बाहर निकला न अंदर आया था। दिल फुटबॉल की मानी सीने की दीवारों से टकरा रहा था। कौन है आप? वो 2 कदम आगे बढ़े थे और सनावर के दांत यूं बजने लगे गोया मुंह में तबला फिट करा रखा हो, जिसे मलक बेद मजनू की तरह कांपने लगा था। भाई, आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। उसकी पुष्ट पर दोबारा आवाज उभरी थी। मैं? और यही वो लम्हा था जब उसे ख्याल आया कि इस वक्त ना तो उसकी पुष्ट पर परांदा झूल रहा है और पैरों में हस्बे मामूल गुस्सा तो दरकनार चप्पल तक मौजूद न थी। और ये ख्याल आते ही उसे और न सूझा तो बंदूक से निकलने वाली गोली वहां से भाग निकली थी। अरे अरे रुको, सुनो! नवाब साहब पुकारते हुए उसके पीछे लपके थे, मगर वो तो यूं भाग रही थी जैसे ब्रेक फेल हो गए हों।
इसी अंधाधुंध भाग दौड़ में वो सामने आते हुए सतून को भी ना देख सकी, बल्कि शायद सतून का ही कसूर था कि वो सनावर को अपनी तरफ भागते देखकर भी अपनी जगह खड़ा रहा। सो अगले लम्हे टन की आवाज के साथ मोहतरमा शहजादी सनावर अफरासियाब खाक चाटते हुए सर पर नाचते सितारों से महजूज हो रही थीं। देखा, गिर गई ना। गोल्डन खुस्से में फंसे गोरे गोरे पाँव उसके ऐन सामने आ रुके थे। उफ, इतनी बेइज्जती! ये कमबख्त जमीन भी तो नहीं फट रही, वरना इसमें समा जाती। उसने जोर से आंखें मीच ली। भाग भी तो ऐसे रही थी जैसे कोई बला पीछे लग गई हो। उन्होंने कदरे झुककर उसे बाजू से थाम कर उठने में मदद दी। बला का नाम तो उन्होंने बदनाम किया होगा जिसके पीछे आप नहीं लगे होंगे। मुश्किल उठते हुए वो बंद होठों समेत चिल्लाई थी। साथ ही पेशानी पर तुलू होते घोमड़ को महसूस करते हुए उसने सर पर पड़ा दुपट्टा पेशानी से नीचे खींच लिया। सलाम साहब, कोई चारा ना पाकर वो बोल उठी थी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन सलाम में इतने सीन नहीं आते। खैर, ये बताओ कौन हो और हमारे कमरे में क्या कर रही थी? मुलाजमा हूँ साहब, कमरे की सफाई करने गई थी। घोमर को बढ़ता हुआ हुजम उसे परेशान कर रहा था। मुलाजमा हूँ? गोया इस घर के मकीन अपने मुलाजमीन में से बहुत अच्छा सलूक रवा रखते हैं। वो उसके अच्छे खासे लिबास से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके थे। लेकिन तुम वहाँ से भागी क्यों? उन्हें अचानक ख्याल आया। मैं डर गई थी। क्यों? क्या हम इतने डरावने हैं? वो गालबन बुरा मान गए थे। नहीं तो नवाब आली, मेरा मतलब है जनाब साहब। ओफो, वो बस अकला कर रह गई। यूं भी अगर तुम सफाई के इरादे से आई थी तो तुम्हें दरवाजा खटखटा कर हमसे इजाजत लेकर अंदर आना चाहिए था। ये क्या चोर की तरह, बल्कि चोरनी की तरह कमरे में दाखिल हुई और फिर भाग खड़ी हुई। ओफो, कहाँ फंस गई मैं? उसने अपने चकराते हुए सर का संभाला। माफ कर दीजिए हजूर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जान छुड़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही समझ आया था। माफ तो हम कर देंगे, बशर्ते कि तुम हमारे सवालों के ठीक ठीक जवाब दो। जी फरमाइए। नवाब साहब ने मुलाजमा समझकर आंख उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा था, सो वो इत्मीनान से सतून के सहारे खड़ी हो गई। ये जो अपनी शहजादी सनावर हैं? जी, वो अपनी कहने पर तड़प उठी थी। नवाब साहब एकदम गड़बड़ा से गए। अब मेरा मतलब है, जो आपकी शहजादी सनावर हैं वो देखने में कैसी हैं? राज़दाराना अंदाज में पूछा गया था। उफ मीना आपी, मुझे वापिस आ लेने दें, आपका तो हशर करूंगी कि आपने बताया नहीं। नवाब साहब ने उसे चौंका दिया। वो जी सभी जैसी हैं। उसने कुछ लम्हे सोचने के बाद कहा। क्या क्या उनकी भी मूछें हैं तो क्या सभी की मूछें हैं? वो सभी की शक्ल सोचने लगी। ला हौला वला, गोया अगर तुम्हें ये भी नहीं मालूम तो तुम शहजादी सनावर के बारे में हमें कैसे बताओगी कि उनकी आंखें चमकदार सितारों की तरह रोशन हैं या अमावस की रात जैसी? उनकी नाक सुतवा है या चपटी? गालों पर गुलाब खिलते हैं या गेंदे के होंठों से फूल झड़ते हैं या पत्थर की कंकरियां? और उनकी हंसी रिमझिम करती नरम फुहार जैसी है या तूफान बादो बारह में गरज चमक का तासुर देती है? हाँ, मुलाजमा, तुमने हमें बहुत मायूस किया। वो खुद कलामी कैसे अंदाज में बोलते चले गए और सनावर का बस नहीं चल रहा था कि उन्हें उठाकर जमीन पर इतनी पटकियां दे कि मोहतरम सतवा नाक, गेंदा, गुलाब सब भूल जाएं और तूफान बादो बारह में गरज चमक का मफहूम भी उन्हें खूब अच्छी तरह समझ में आ जाए। समझ में नहीं आता क्या करूं, इतने दिन हो गए हैं और अभी तक। वो बड़बड़ाते हुए बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए थे। सनावर ने भी कमरे की सफाई के साथ साथ नवाब साहब पर भी लानत भेजी और अपना माथा सहलाती हुई वहां से चल दी। अब उसका इरादा मीना आपी से जंगो जदल का था। बात अजीब ही नहीं, हैरान कुन और निहायत परेशानी का सबब भी थी। मीना आपी ने गुड्डू की नई शर्ट धोकर टेरेस पर डाली थी। बाद में टेरेस से कपड़े उतारते हुए मालूम हुआ कि शर्ट नीचे लॉन में जा गिरी है। बाद में शर्ट तो लॉन से मिल गई, मगर उसकी दोनों आस्तीनें और आधा दामन गायब था। सब भी मियाँ अपनी किताब बरामदे में तख्त पर रखकर भूल गए थे। अगली सुबह इमाम गजाली और इब्ने खल्दून के असबाब किताब से पूरी तरह गायब हो चुके थे। और इस वक्त तो दादा हजूर भी परेशान हो उठे जब रॉकी उनके सामने पान की गलोरियां सजाकर उनके लिए पानी का गिलास लेने गया। वापिस आया तो पान की गलोरियों का नामो निशान तक न था। रॉकी दद्दा से ये उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि इस अरसे में उनके पास कौन आया था, और दद्दा कुछ भी कहने से माजूर नजर आ रहे थे क्योंकि इस दौरान इन्हें सिर्फ ऊँग आई थी और बस। उसी शाम महरीन ने गुड्डू को प्लेट भर के आलूओं की चिप्स दिए, उसे बरामदे में छोड़ा और जब वो अपना चाय का कप लेकर वापिस आई तो चिप्स वाली प्लेट बिल्कुल खाली थी। गुड्डू मियाँ की नजरें सामने दीवार पर चिपकी थी और वो खुद गौतम बुद्ध के मुजस्मे की तरह साकित थे। सबसे ज्यादा सदमा तो नाजनीन को इस वक्त उठाना पड़ा जब उसके दुपट्टे में दो बड़े बड़े निहायत डिजाइनदार शगाफ पड़े। ये वो दुपट्टा था जिस पर वो महीने भर से क्रोशिया का काम कर रही थी और इरादा ईद पर पहनने का था। इस सदमे के जेरे असर घर भर के सामने दादो फरियाद की गई कि खुदारा इस मनहूस को तलाश किया जाए जो ये कारनामे सर अंजाम दे रहा है।
سبھی تو ان دنوں اپنے راج دلارے بکرے کی سیوا میں مصروف تھا، سو اس نے ناظرین کی بات پر کان دھرنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی۔ نواب حسان نے ساری بات سننے کے بعد سارا الزام روکی کے سر ڈال دیا تھا، کیونکہ کپڑے نکلنے کا عملی مظاہرہ وہ پہلی ملاقات میں اس کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ لیکن ان کی بات کو اس لیے تسلیم نہیں کیا گیا تھا کہ کتابیں نکلنے کا عملی مظاہرہ روکی نے ابھی نہیں کیا تھا۔ مہرین کو پورا یقین تھا کہ ساری کارستانی سبی کی ہے، کیونکہ سارے گھر میں ایک وہی بندہ ایسا تھا جو بیک وقت پان جسم کا شوقین تھا۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سبی کو نازنین کے دوپٹے اور گڈو کے شرٹ سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ لہٰذا مسئلہ ابھی جوں کا توں برقرار تھا۔ سناور بھی برآمدے میں تخت پر لیٹی اسی سوچ و بچار میں مصروف تھی اور ساتھ اپنی سوجی ہوئی ناک اور ماتھے پر بنے گھومڑ کو بھی سہلا رہی تھی، جس کے باعث وہ 2 دن سے سب کے ساتھ مل کر کھانا بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اسے اس حالت میں نواب حسان دیکھیں یہ بات کسی کو بھی منظور نہیں تھی، لہٰذا کھانا تینوں وقت اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرتے ہوئے اس کے کمرے میں ہی پہنچایا جاتا رہا تھا۔ اور سناور اس بات سے اتنی خوش تھی کہ اس نے دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جوں ہی اسے نواب صاحب کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا جائے گا وہ ایک بار پھر ستون کو ٹکر مار دے گی۔ سناور، مینا آپی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا تھا۔ جی؟ اس نے سرتاپا اوڑھی ہوئی چادر چہرے سے ہٹا کر انہیں دیکھا۔ خاصی مطمئن اور شاداب فرحاں لگ رہی تھیں۔ سناور کو یقین تھا وہ انیکسی کی طرف سے آ رہی ہیں، کیونکہ انیکسی سے واپسی پر نواب حسان کی خوبیوں کی فہرست ان کے پاس مزید لمبی ہو جاتی تھی، جسے ہر روز اثر نو سے سناتی تھیں۔ میں نے نواب حسان سے تمہاری خرابی طبیعت کا ذکر کیا تھا، وہ تمہاری عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، انہوں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا، اور وہ چند سیکنڈ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپی، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو جاتا ہے؟ اب سوجی ہوئی ناک اور اس گھومڑ کے ساتھ؟ جی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، تمہاری ناک اور گھومڑ بھی بس غائب ہونے والا ہے، ایک آدھ نظر میں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فور گاڈ سیک آپی، خواہ مخواہ میرا تماشا مت بنائیں۔ اسے تاؤ آ گیا۔ تماشا میں تمہارا نہیں بنوا رہی، تم ہمارا بنوا رہی ہو۔ ہفتہ ہو گیا ہے نواب حسان کو یہاں آئے ہوئے، بس ایک جھلک دیکھنی ہے انہوں نے تمہاری، اور تم ہو کے خواہ مخواہ بہانے پر بہانہ کیے جا رہی ہو۔ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے متعلق کہ ہم خواہ مخواہ اس کام کو تول دیے جا رہے ہیں؟ بھاڑ میں جائیں وہ، اور جہنم میں جائیں ان کی سوچیں۔ وہ دانت پیستی تخت سے نیچے اترنے لگی تھی کہ مینا آپی نے وہیں اسے دبوچ لیا۔ آرام سے یہاں بیٹھی رہو، کھا نہیں جائے گا وہ تمہیں۔ غضب خدا کا، نرالے ہی ڈھنگ ہے محترمہ کے۔ مینا آپی کے غصے کا گراف اوپر ہی اوپر جا رہا تھا۔ جانتی ہو دادا اور امی کتنی پریشان ہیں، اگر وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے تو اس کا مطلب نہیں کہ تم سر پر چڑھتی جاؤ۔ آرام سے بیٹھو، اور خبردار جو ہلی یہاں سے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی منتر پھونک کر سناور کو وہیں جامد و ساکت کر دیں۔ اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے انہوں نے تکیے کے نیچے سے پراندہ چٹیا سمیت نکالا اور اس کے بالوں میں لگانے لگیں۔ اوفو، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ ضرورت ہے بے وقوف، حسان کی والدہ کو لڑکیوں کے لمبے بال بہت پسند ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یہ نکلی چٹیا میں ساری زندگی تو نہیں لگا سکتی نا، شادی کے بعد بھی کوئی بہانہ کیا جا سکتا ہے۔ کہہ دینا چوئنگم لگ گئی تھی بالوں میں، اس لیے کٹوا دیے۔ مینا ابھی بہت دور تک سوچ چکی تھیں۔ ارے وہ آ رہا ہے حسان، آرام سے بات کرنا اور دوپٹہ سر پر ٹھیک اوڑھ لو، انہوں نے ایک دم بتایا تو سناور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آپی، میں بہت پزل ہو رہی ہوں۔ اوفو، بہت بے وقوف ہو تم، اور یہ رنگ کیوں پیلا پڑ رہا ہے تمہارا؟ لو اب ہاتھ پاؤں بھی کانپ رہے ہیں۔ سناور، میں کیا کروں تمہارا؟ بھائی خود کو سنبھالو، وہ نزدیک آ گئے ہیں۔ مینا آپی اسے تسلی تو کیا دیتی، الٹا اس کے چھکے چھڑا رہی تھیں، اور اس کی تو یہ حالت تھی کہ اب روتی ہے کہ تب۔ اچھا میں ذرا گڈو کو دیکھ لوں، انہوں نے بہانے سے اٹھنا چاہا مگر سناور نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپی پلیز، آپ تو بیٹھی رہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے دیکھیں گے مجھے۔ اس کی آواز میں بھی کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ لو اور سنو، بدتمیز، آنکھوں سے ہی دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اب مجھے جانے دو، وہ برآمدے کی سیڑھیوں تک آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ کیا آ گئے ہیں؟ سناور کی آنکھیں پھیلیں اور اگلے ہی لمحے اس نے آپی کا ہاتھ چھوڑا تھا اور چھلانگ مار کر تخت سے نیچے اتر آئی۔ سناور، نہیں بھائی، یہ بدتمیزی ہے۔ اس کا ارادہ بھانپ کر وہ ایک دم اسے پکڑنے کو اٹھی مگر ان کے ہاتھ میں صرف پراندہ تھا چٹیا سمیت۔ سناور تو محض 2 کھانچوں میں مہرین کے بیڈ روم کی کھڑکی تک پہنچی اور دوسری طرف بیڈ پر چھلانگ لگا دی۔ چند لمحوں بعد مہرین کے چلانے پر ہی اسے معلوم ہوا کہ وہ بیڈ پر نہیں خود مہرین پر سوار ہے۔ ادھر مینا آپی کی گول گول گھومتی آنکھیں ہاتھ میں جھولتے پراندے کا نظارہ کر رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس ناقابل یقین واقعے پر ششدر رہ گئی تھیں۔ اب کیا ہو گیا؟ سناور کی عیادت کی دعوت انہوں نے خود دی تھی حسان کو۔ بے عزتی، شدید بے عزتی، کیا بتاؤں گی کہ بیمار صاحبہ ابھی بھی ٹارزن کی طرح چھلانگیں لگا کر یہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ قدموں کی آواز نزدیک آ رہی تھی۔ اس کا دل رونے کو چاہا مگر اگلے ہی پل وہ گڑاب سے تخت پر پڑی چادر کے نیچے گم ہو چکی تھیں۔
लगता है तबीयत ज्यादा ही खराब है। नवाब हसन ने तख्त पर लेटे बेसुध वजूद को देख फिक्रमंदी से सोचा, फिर हल्का सा खंकारे ताकि सनावर को उनकी आमद की इत्तला मिल सके। उसके जवाब में चादर के पीछे से भी हल्का सा खंकारने की आवाज आई। गोया वो उसकी मौजूदगी से वाकिफ हो चुकी थी। वो चंद लम्हे मुंतजिर रहे कि मोहतरमा उठेंगी, शर्फे दीदार बख्शेंगी और उन्हें तशरीफ रखने को भी कहेंगी, मगर जब कोई उम्मीद बन नहीं आई तो इस बेइतनाई का सबब उनकी खराबी तबीयत को समझते हुए खुद ही मोंडा खींचकर तख्त के पास बैठ गए थे। सुना है दुश्मनों की तबीयत नासाज है। उन्होंने आयादत का फर्ज निभाया। दुश्मनों की तबीयत नासाज होती तो मैं भंगड़ा डाल रही होती, ना कि तख्त पर अधमुई पड़ी होती। जवाब तो मिला था, लेकिन बड़बड़ाहट की सूरत में। नवाब साहब की समातें महसूस तो ना हो सकी, मगर जवाब का मुतालबा दोहराना इसलिए मुनासिब नहीं समझा कि हो सकता है बोलने में भी तकलीफ हो। और क्या क्या मशागिल हैं आजकल आपके? वेट लिफ्टिंग करती हूँ और वॉलीबॉल खेलती हूँ। बेवकूफ़ इंसान, बीमारी में बंदा आराम का मशगला ही अपना सकता है। एक और बड़बड़ाहट उभरी थी। नवाब हसन बेचैनी से चादर को घूरने लगे। आखिर ये चादर हटा क्यों नहीं देती? वो उलझ गए। एक लम्हे के लिए दिल चाहा झटके से चादर का कोना पकड़कर खींच लें, और वो ये कर भी देते अगर आदाब के खिलाफ ना होता। आपने कोई दवा वगैरह ली है? उन्होंने पहलू बदला। जी, मीना आपी ने इस दफ़ा जी पर ही इक्तफा किया था, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने बाल खींचे जाने का एहसास हुआ और एक लम्हे को सुनसी हो गईं। ओके, आप फिक्र मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। नवाब हसन दिल से कह रहे थे, मगर मीना आपी का खून खोल रहा था। ये शख्स इतना बदतमीज लगता तो नहीं। उनकी लंबी चुटिया चादर से बाहर थी और मुसलसल खींची जा रही थी। हमें इजाज़त दीजिए फिर। मेरी तरफ से 1000 बार इजाज़त। अच्छा हुआ जो मेरी जगह सनावर नहीं थी, वरना अभी यहाँ तिक्का बोटी कर देती तुम्हारी। उन्होंने दांत पीसे। अच्छा फिर हम चलते हैं। नवाब साहब पूरी तरह मायूस होकर उठे थे। हम दुआ करेंगे अल्लाह शिफा दे, अब चलते हैं। उन्होंने आखिरी नज़र चादर पर डाली और सर झुकाकर चल दिए। अरे बदबख्त, जाना है तो जाओ। मेरी चोटी को बाप का माल समझकर ले जा रहे हो क्या? चोटी मुसलसल खींची चली जा रही थी और तकलीफ की शिद्दत से उनकी आंखें भर आई थीं। चंद लम्हे बाद जब दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया, तब उन्होंने एक झटके से चादर हटाई और अगला लम्हा बेहद हैरानी का था, क्योंकि उनकी चोटी तक से नीचे जा रही थी। उन्होंने सर उठाकर देखा। नवाब हसन अनेक्सी का दरवाज़ा पार कर चुके थे। तो फिर ये कौन है? उन्होंने डरते डरते तक से नीचे झांका और अगले ही पल उनकी आंखें फैल कर कानों से जा लगी थीं। गुड्डू की शर्ट, सब्बी की किताब, दद्दा का पान, चिप्स, नाजनीन का दुपट्टा और मेरी चोटी। हाय मेरी चोटी, मेरे बाल, आ आ। छत पार चीखों ने घर के दरो दीवार को हिला दिया था, और जहां घर का हर फर्द उनकी तरफ भागा चला आया था, वहां तक के नीचे बैठा बकरा भी घबराकर भाग खड़ा हुआ था। सनावर और मेहरीन बेडरूम की खिड़की से बहे वक्त पिलाने की कोशिश में फंस कर रह गई थी। अम्मी और नाज़नीन जब बरामदे में पहुंची तो रॉकी और सब्बी तख्त पर उछलती मीना आपी से उनकी चीखों का सबब पूछने में हलकान हुए जा रहे थे, जबकि मीना आपी का एक इशारा बकरे की तरफ था और दूसरा अपने बालों की तरफ। अरे वो गया। दद्दा भी अपने कमरे से निकले थे और नज़र सीधी बकरे पर जा पड़ी, जिसका रुख बैरूनी गेट की तरफ था। वो बाहर निकल जाएगा, वो निकल रहा है। अरे बदबख्तों, भागो वरना हाथ मलते रह जाओगे। उनकी दुहाई के जवाब में मुतहर्रिक होने के बजाय सब लोग साकित हो गए, तो उन्होंने आगे बढ़कर जोर से अपनी लाठी रॉकी की कमर पर जड़ दी थी, जिस पे रॉकी ने फुल स्पीड में भागकर बकरे के गले में बंधी रस्सी को काबू कर लिया था, जिसके नतीजे में रॉकी को घसीटकर गेट से बाहर ले जाने में बकरे को कोई मुश्किल पेश नहीं आई थी। सब भी उसके पीछे भागा था। नहीं, ये इसके बस का रोग नहीं, इस काबिल कहाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। दद्दा ने फुर्ती से शेरवानी के बटन खोले। मेहरीन ने उतारने में मदद दी। छड़ी उनके हाथ में थमाई और हिम्मत मर्दा का नारा लगाते जो दद्दा ने दौड़ शुरू की तो पहले ही मरहले पर टकराव सतून से हो गया। नाजनीन और सनावर ने आगे बढ़कर ना थामा होता तो वे चारों शाने चित हो चुके होते। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, अभी मुझ में इतना दमखम है कि मैं बकरा। हाय, आखिरी सीढ़ी दिक्कत से ही सही मगर बहरहाल पार कर ली थी। क्या हुआ? ये शोर क्या था? नवाब हसन जाने कब नाजिल हुए थे। उनकी आवाज़ सुनते ही मेहरीन और नाजनीन ने सनावर को अपने हुक्म में छुपा लिया। हमारा बकरा भाग गया है। बकरा भाग गया? मगर वो तो दद्दा। हसन ने हैरत से गेट की तरफ भागते हुए दद्दा को देखा। ओफ भाई, वो तो काफ़ी पहले भाग गया था। अम्मी ने फौरन वजाहत कर दी थी। अच्छा, आप फिक्र न करें, अभी ले आते हैं, नवाब साहब ने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा और साथ ही अपना सलीमी शाही गुस्सा बगल में दबाया और चंद लम्हों में ही नज़रों से ओझल हो गए। दद्दा अलबत्ता काफ़ी देर बाद मंजर से गायब हुए थे, और तभी इन तीनों को मीना आपी का ख्याल आया था, जो अम्मी की गोद में सर रखे 8-8 आंसू बहा रही थीं। इन तीनों ने अपनी अबरी बारी इनके बालों की हालत ज़ार पर
इजहार अफसोस किया जो बकरे की जुगाली के बायस काफी खराब और काटने के लायक हो गए थे। गुड्डू के पापा को तो मेरे बाल बहुत पसंद थे, अब उन्हें क्या बताऊंगी। कह दीजिएगा बालों को च्युइंगम लग गई थी इसलिए काट दिए। सनावर ने उनका मशवरा उन्हीं को लौटा दिया तो उनके रोने में शिद्दत आ गई। रात गए तक वो सब लोग जाने वालों का इंतजार करती रहीं। फिर वो सब तो लौट आए मगर जिसको लेने गए थे वो साथ ना आया। इस भरपूर नाकामी पर जहाँ सब शर्मिंदा थे वहाँ सब भी रंजीदा भी था। एक तो बकरे की गुमशुदगी, दूसरा इन तानों की बदौलत जो बकरे की वजह से उसे सुनने पड़े थे। फिर 2 रोज हो गए। मीना अपने बालों का शौक मनाती रहीं, सब भी बकरे की गुमशुदगी का। तीसरे रोज दद्दा मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे थे जब चंद घर छोड़कर रहने वाले मतीन साहब ने उनसे एक निहायत अहम मसला डिस्कस किया, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि बाज कपड़े घर से परे गायब थे और बाज आधे आधे। वाह सुबहान अल्लाह, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, दद्दा ने खुशगवार अंदाज में कहा। फिर उस वक्त वो अपनी पूरी फौज समेत मतीन साहब के घर वारिद हुए और लॉन में छुपे बैठे बकरे को बरामद करके ही वापिस आए। सभी बकरे को काबू करने के लिए दूर दूर दो रसों का इंतजाम कर रहा था, जबकि मेहरीन और सनावर मीना आपी को काबू कर रही थी, जिनका कहना था कि इस बकरे की कुर्बानी आज ही की जाएगी। मीना आपी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सनावर ने किचन में दाखिल होते हुए पूछा। मीना गुड्डू के लिए कसरत बना रही थी। जो दिल चाहे बना लो, उन्होंने कदरे रूखे फीके अंदाज में कहा तो वो तवील सांस लेकर रह गईं। वो कल से उससे यूं ही नाराज थीं। मीना आपी, रॉकी जोर जोर से पुकारता हुआ आया था। वो नवाब साहब आए बैठे हैं, गालबन कोई फोन करना चाह रहे हैं, उन्हें बिठाओ मैं आ रही हूँ। मीना आपी उससे कहकर चूल्हा बंद करने लगी थी। ये बेचारा यूं ही ख्वार हो रहा है, कह देती हूँ इसे बोरिया बिस्तर बांधे और जाए यहाँ से। वो बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। बड़ा एहसान होगा मुझ पर, कह दीजिएगा मेरी बला से। वो किचन से बाहर चली गई। तब उसने दिल की भड़ास निकाली। न जाने क्या हो गया है सब लोगों की अकल को, और मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये इतने दिनों से इस मसनूईपन से उकताए क्यों नहीं। मसनूई बोलना, उठना बैठना, मसनूई रवायात, और तो और बाल भी मसनूई। उफ, अगर गलती से भी मोहतरम मुझे पसंद कर बैठे तो मेरी तो जिंदगी अजाब बन जाएगी ना। वो बोलते बोलते चावल निकाल कर चुनने लगी। मीना आपी लाउंज में पहुंची तो नवाब हसन गहरी सोच में गुम थे। वो बगौर उन्हें देखते हुए सामने सोफे पर बैठ गईं। रोकी बता रहा था कि आपको कोई फोन करना है। मीना आपी की आवाज पर वो चौंक गए। जी हाँ, मैंने सोचा वालदा मोहतरमा की खैरियत मालूम कर ली जाए। बहुत नेक ख्याल है, लेकिन इसमें इजाजत लेने की क्या जरूरत थी। फोन आपके सामने पड़ा है, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। नवाब साहब से बात करते हुए उनका लहजा खुद ब खुद मुहज्जिब हो जाता था। बहुत शुक्रिया। उन्होंने फोन अपनी तरफ खिसकाया और नंबर प्रेस करते हुए कनखियों से मीना आपी को देखा। वो गालबन तकलिया चाहते थे मगर मीना आपी ढीठ बनी भरपूर बेनियाजी का मुजाहिरा करते हुए पानदान खोलकर बैठ गई थी। दर हकीकत कान नवाब हसन साहब की तरफ लगे हुए थे। चंद लम्हे बाद नवाब ने बात शुरू की तो वो अपनी जगह साकित हो गई। हाथ रोककर समातों पर पूरा जोर दिया मगर नवाब साहब भी अपने नाम के बस एक ही थे। पूरे 15 मिनट बात की मगर उनकी मिन मिन के सिवा मीना आपी को कुछ सुनाई नहीं दिया था। अल्लाह जाने क्या क्या शिकायतें किए जा रहा है। वो अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। तभी नवाब हसन रिसीवर रखकर उनकी तरफ पलटे। घर में सब लोग ठीक ठाक हैं। वालदा मोहतरमा आप सबको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मीना आपी, आप हमें पान नहीं खिलाएंगी क्या? घर बात करने के बाद वो काफी हशाश बशाश लग रहे थे। पान? मीना आपी गड़बड़ा सी गई। जी, पान हमारे यहाँ सभी बहुत शौक से खाते हैं। वालदा मोहतरमा तो पानदान तक से हटाने ही नहीं देती। बसा औकात दीवान खाने से 40-50 ग्लोरियों की मांग आ जाती है, लिहाजा वो तो हर वक्त छालियाँ कुतरने में मसरूफ रहती हैं ताकि ऐन वक्त पर परेशानी ना हो। पान की ग्लोरियां बनाकर जर्दा खासदान में अलग रख दिया जाता है। हैं खासदान, पानदान, जर्दा? मीना आपी के फरिश्तों को भी खबर ना थी कि पान कैसे तैयार करते हैं। जल तू जलाल तू, आई बुला को टाल तू, उनके होंठ विर्द करने लगे। पहले क्या लगाते हैं, कत्था, चूना या छालिया? उनके हाथ में पत्ता लरजने लगा। वो किसी गैबी सहारे को याद कर रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उफ, एक तो मैं इस गरारे के हाथों। अम्मी हजूर, अम्मी हजूर। अम्मी की आवाज ने जैसे मुर्दा तन में जान डाल दी थी। अम्मी भी जैसे आते ही सूरत हाल भांप गई थी। आते ही फौरन पान दान उनके हाथ से ले लिया। अरे इधर दो, मैं खुद पान बनाती हूँ बच्चे के लिए। वो इस हुनर से खूब वाकिफ थी, लिहाजा चंद मिनट में तैयार शुदा पान उनके सामने था। और वो नवाब साहब भी क्या जो तकल्लुफात को पीछे छोड़ दें। झट से पान लिया और मीना आपी को पेश कर दिया। वो बेचारी हक्का बक्का सी आंखें पटपटाते हुए उन्हें देखे गई। लीजिए ना मीना आपी। उनके इसरार पर उन्होंने बादल नखासा पान उठाकर मुंह में रख लिया। अब उन्हें क्या बताती कि उन्हें पान से एलर्जी है। पान खाना तो दरकिनार, वो इसकी खुशबू से भी दूर भागती हैं।
मगर अब तो मजबूरी थी ना। क्या सोचते नवाब साहब? क्या नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हैं और पान नहीं खाती, लिहाजा वो अपनी खानदानी नवाबी को मशकूक होने से बचाने के लिए उन्होंने पान मुंह में दबा लिया था। और 5-10 मिनट की लगातार दुआओं के बाद नवाब साहब मुंह में दूसरा या गालबन तीसरा पान दबाए वहां से उठे थे, तो मीना अभी मुंह पर हाथ रखे उबकाई रोकते हुए सीधी बाथरूम की तरफ भागी थी। बहुत खूब, और जोड़िए नवाब हसान जैसे खालिस नवाब से रिश्ता, थोड़ी देर में ये दुर्गत बना गए मोहतरम। सनावर हाँफती हाँफती मीना अभी को देखकर सोच रही थी। दराज कद, फरबही माइल जिस्म, गुलाबी रंगत, हल्के आसमानी रंग का गरारा सूट जिसके हमरंग दुपट्टे पर निहायत खूबसूरत सफेद लेस लगी हुई थी। स्याह बालों की दराज चोटी कलफ लगे दुपट्टे के नीचे से बाहर झांक रही थी। सामने के बालों की चंद लटें सफेद थीं जो उनके वकार में मजीद इजाफा कर रही थीं। कानों में सोने के बाले, कलाइयों में 2 बड़े बड़े सोने के कड़े, गले में झूलता लॉकेट। गाड़ी से बरामद होने वाली खातून का हुलिया ही नहीं, अंदाजो अतवार और चाल ढाल से भी ऐसी भरपूर तमकीनत और शाइस्तगी लिए हुए थी कि तखत पर नीम दराज दद्दा के हुक्के की गुड़गुड़ गैर मामूली तौर पर तबीर हो गई थी। और अम्मी जो सर पर मेहंदी थोपे दरख्तों से छन छन कर आती धूप से लुत्फानंदोज हो रही थीं। आओ ताओ देखे बगैर वहां से रवाना हुई और बाथरूम में जा शावर तले ही दम लिया। मीना आपी ने खातून को पहचानते ही दद्दा के कान में सरगोशी की। ये मोहतरमा मेहनाज साहिबा थीं, नवाब हसान की वालदा। मीना आपी ने उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ खुशामदीद कहा, ड्राइंग रूम में बिठाया और रॉकी को बावर्ची खाने में चाय पानी के लिए दौड़ाया और बाकी फौज को सनावर की तलाश में, जो आधे घंटे की भरपूर मुशक्कत के बाद शहजादी सनावर को पाई बाग में आग के दरख्त के सबसे बुलंद शाख से उतारने में कामयाब हुई थी। ओफो, कौन सी क्यामत आ गई है जो 2 मिनट सब्र नहीं हो सका तुमसे। वो मुश्किल केरियों तक पहुंच पाई थी, सो अब सख्त झिंझलाई हुई उतरी थी। क्यामत ही नहीं, आफत है आफत। कौन? बालों में अटके पत्तों को निकालते हुए वो चौंक गई। आपकी सास, मेरा मतलब है मुतवक्का सास, मेहरीन काफी पुरजोश अंदाज में बता रही थी। ओह नो, वो एक तक नवाब साहब तो भुगताए नहीं गए, ऊपर से ये दूसरी मुसीबत। वो किलस कर रह गई थी। तो आप इस दूसरी मुसीबत के नजूल पर ही अपने रंग ढंग बदल लें। ये नसीहत सब्बी की तरफ से आई थी जो बकरे की कुशादा पेशानी पर मेहंदी से बेल बूटे बना रहा था और बकरे साहब उसकी आस्तीन को मुंह में लेने की तगोदो कर रहे थे। मेरे रंग ढंग में ऐसी कोई बुराई नहीं जो मैं उन्हें बदलने की कोशिश करूं। ये तुम्हारी मीना आपी को ही ऊट पटांग सूझती हैं, लेके मुझे भी मोम की नाक बना दिया, जिधर चाहते हैं मोड़ देती हैं। कभी चोटी लगाई जा रही है तो कभी पान बनाना सिखा रही हैं। आदाब तस्लीमात हिफ्ज करते जुबान घिस गई है मेरी, और मुझे तो लगता है बात पक्की होने पर मुझे उर्दू फाजिल का कोर्स करवा रही होंगी। तो भाड़ में गई ऐसी शादी। भाई इससे अच्छा है बंदा कुंवारा ही मर जाए। मेरा नहीं ख्याल कि जन्नत में कुंवारों का दाखिला ममनून होगा। उसकी जुबान फराटे भर रही थी, कोई दूसरा बोलने की जुर्रत क्यों करता। सो कान दबाए खामोशी से खड़े रहे और जूं ही उसने अपने कमर की तरफ कदम बढ़ाए, नाजनीन मीना आपी की तरफ भागी और मेहरीन अम्मी की तरफ। मीना आपी किचन में दोपहर के खाने में मसरूफ थी। उनकी बड़बड़ाहट से अंदाजा होता था कि सांस के साथ साथ हाथ पैर भी फूले हुए हैं। काम जरा सा बढ़ जाता तो उनका हमेशा यही हाल होता था। कहाँ मर गई थी तुम? एक तो सब की सब 1 साल गायब हो जाती हो। वो रॉकी बदतमीज अभी तक बाजार से नहीं लौटा। किसी दुकान के थड़े पर बैठा हिसाब कर रहा होगा कि किस चीज की कीमत बढ़ाकर अपने लिए बचत कर सकता है। एक नंबर का हरामखोर है। ऊपर से ये गोश्त गलने में नहीं आ रहा और तुम खड़ी मुंह क्या देख रही हो? आटा ही गूंद लो। लेकिन पहले ये थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडा करके गुड्डू को दे आओ। जिद में आ गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तुम लोगों से तो मुझे वैसे भी उम्मीद नहीं है कि तैयारशुदा खाना वक्त पर मेज पर चुन दो। उन्होंने खटाक खटाक पतीलों के ढक्कन बंद किए। नाजनीन ने परात छोड़कर कस्टर्ड हाथ में लिया, उसे ठंडा करके गुड्डू को दिया और गुड्डू को सब्जी के हवाले करके फिर से किचन में भागी चली आई। मीना आपी बिरयानी दम कर रही थी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर आटा गूंद लो। उनके हस्बे हिदायत नाजनीन ने परात उठाई हुई थी जब नया हुक्म जारी हो गया। 1 मिनट रुको जरा, ये सलाद के लिए चीजें पहले काट लो, मैं कस्टर्ड फ्रीजर में रख दूं ठंडा होने के लिए। वो हुक्म की गुलाम सलाद बनाने लगी। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे जब मीना अभी दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। तोबा है, घंटा हो गया है तुम्हें सलाद बनाते हुए। इधर लाओ छुरी। तुम ऐसा करो, हरा धनिया, हरी मिर्च और एक टमाटर बारीक बारीक काट कर गोश्त के ऊपर छिड़क दो और आंच जरा हल्की कर दो। नाजनीन छुरी उनके हाथ में थमाकर तवील सांस लेती हरा धनिया छीलने लगी थी। लो भाई, ये सलाद तो बन गया, अब मैं जल्दी से रोटियां। अरे, उनकी नजर खाली परात पर जा पड़ी और सारी तेवरी चढ़ गई। गजब खुदा का नाजनीन, 2 घंटे पहले मैंने तुम्हें आटा गूंदने को कहा था और तुम हो के हद हो गई भाई सुस्ती और काहिली की। आपी, इस वक्त से तो आप अब आहा आपी अब आहा आप ही करके मासूम बन जाओ। बन्नो भी, आगे चलकर यूं गुजारा नहीं होता।
2 के बजाय 4 हाथों से काम करो तो ससुराल वाले तब भी कहीं ना कहीं से नुक्स निकाल ही देते हैं। अब हटो यहाँ से, मजीद देर कराओगी क्या? मैं खुद ही गूंद लेती हूँ आटा भी, खुदा जाने मेरे बाद ये घर कैसे चलता होगा। वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही फुर्तीली हो गई थी। नाजनीन चंद लम्हे खड़ी रही, फिर दबे पांव किचन से बाहर आ गई। पता नहीं शादी के बाद बड़ी बहनें ऐसी क्यों हो जाती हैं। वो सोचती हुई सनावर की तरफ आ गई, जहां मेहरीन सनावर के सामने हाथ जोड़ने के बाद घुटने टेक रही थी कि वो अपना हुलिया दुरुस्त करके अपनी सास को सलाम अर्ज कराए। लेकिन सनावर तो गोया कसम खाए बैठी थी कि आज वो किसी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेगी। बेवकूफ लड़की, जरा अपनी अकल को हाथ मारो और सोचो कि बाल कटवाने, जीन्स पहनने या अंग्रेजी अदब पढ़ने से हमारी नवाबी में कोई कमी वाकया नहीं होगी। हाँ, अगर उन्हें 18वीं सदी के नवाबों से रिश्ता जोड़ना है तो वो बखुशी यहाँ से जा सकते हैं। हम क्यों खामखा मसनूई चीजों का सहारा ले रहे हैं उनके लिए? इतने दिनों से हम अपनी मर्जी से हंस नहीं रहे, बोल नहीं रहे। मुबादा उन्हें कोई बात बुरी ना लग जाए। सभी अपने दोस्तों को घर लाने से कतराता है कि कहीं घर का माहौल देखकर वो उसका मजाक ना उड़ाने लगे। अम्मी को पानदान और उगालदान के सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। मीना आपी हैं तो तीनों वक्त नित नए खाने बनाकर मुझे सुगड़ और सलीकामंद साबित करने में हलकान हुई जा रही हैं। दद्दा अलबत्ता इस सारी सूरत हाल से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो तो किसी सूरत इस नवाब को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। ये कोई नहीं सोचता कि शादी 2 दिन का नहीं, उम्र भर का बंधन है। कहाँ तक बदलूं मैं खुद को? अपना आप मारकर इन रवायात की पासदारी कर सकूंगी जिनकी मुझसे तवक्का की जाएगी। और मैं खुद को मरवाना नहीं चाहती। मैं धोखा देकर किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वो खालिस मेरी जात की अच्छाइयों बुराइयों समेत कबूल कर सकें तो ठीक, वरना ये रोज रोज की ड्रामेबाजी अब मुझसे नहीं होती। मैं अपने असल हुलिये समेत नवाब हसन की वालदा के सामने नहीं जाऊंगी, वरना उसीली आवाज पर सनावर के साथ साथ मेहरीन और नाजनीन भी चौंक गई थी। मीना आपी दरवाजे में खड़ी खशमगी निगाहों से उसे घूर रही थी। मैं ठीक कह रही हूँ आपी, प्लीज आप भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा, उसने 2 टोक लहजे में कहा था। जवाबन मीना आपी ने मेहरीन और नाजनीन को बाहर जाने का इशारा किया और उनके निकलते ही कटाक से दरवाजा बंद कर दिया था। आज मीना आपी को मुंह की खानी पड़ेगी। सनावर के इरादे बहुत अटल हैं। नाजनीन के ख्याल से मेहरीन पूरी तरह मुत्तफिक थी, लेकिन इस वक्त वो मर जाने की हद तक हैरान रह गई थी। जब दरवाजा खुलने पर उन्होंने मैरून चूड़ीदार पजामे और स्याह कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सनावर को देखा, जो उन पर एक भी नजर डाले बगैर अपनी पुष्ट पर लंबी चोटी लहराते हुए ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी और चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए मीना आपी उसके पीछे पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेहरीन की हैत में डूबी आवाज उभरी थी और वो दोनों खोए खोए से अंदाज में ड्राइंग रूम की तरफ चल दी थी, जहां शहजादी सनावर बड़े अदब से झुककर नवाब हसन की वालदा को आदाब कह रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। उन्होंने पहली नजर में ही गोया उसे ओके कर दिया था। माशाल्लाह, बाल भी काफी लंबे हैं, सताइशी अंदाज में कहते हुए उन्होंने उसकी चुटिया को छुआ था। आहिस्ता पकड़े वरना गिर जाएंगे। सनावर की बड़बड़ाहट मीना आपी ही सुन सकी थी। बहुत खूबसूरत और चमकदार हैं। जी, लेकिन मेरे नहीं हैं, बहुत इत्मीनान से इतला दी गई थी। मीना आपी का दिल उछल कर हलक में आ गया और मेहनाज साहिबा ने गोया करंट खाकर उसकी चुटिया छोड़ दी। क्या मतलब? वह हैरान परेशान सी उसका मुंह देख रही थी। आजिजी जी, आजिजी और इनकिसारी कूट कूट कर भरी हुई है हमारी शहजादी जी में। कहती हैं इसमें मेरा क्या कमाल, ये तो सब अल्लाह की देन है। इसी हवाले से कह रही थी कि रॉकी ने बर वक्त मामला संभाला था। मेरा ख्याल है रॉकी खाने के लिए बुलाने आया है, चलिए खाना खाते हैं। मीना आपी ने नवाब हसन की वालदा से कहा और साथ ही बड़ी उजलत में सनावर को बाजू से पकड़ कर उठाया। तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। उसे बकायदा धकेला था उन्होंने कमरे की तरफ, लेकिन जब बाद में वो खुद उसकी खबरगिरी करने गई थी तो दरवाजा अंदर से बंद था, जो रात गए तक बंद ही रहा था। ईद का दिन था। बुनियान धोती पहने हट्टा कट्टा कसाब देखने में लगता था बकरा नहीं बंदा ज़िबा करने आया है। अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए उसने तेजदार चुरा हाथ में लिया और अल्लाह अकबर कहकर बकरे पर पुल पड़ा। एन उसी वक्त एक नुस्वानी चीख बुलंद हुई और बकरा एक खूबसूरत परी का रूप धार गया। वो परी जिसके परों से सफेद धूलिया रोशनी निकल रही थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आई और फिर क्या? फिर मेरी आंख टूटी और ख्वाब खुल गया। रॉकी अभी तक सदमे के आलम में था। है, मगर मुझे तो तुम्हारी टूटी हुई आंख नजर नहीं आ रही। सभी ने उसकी दोनों आंखों का मुआयना किया। मेरा मतलब था, मेरा ख्याल है कि तुम ममियाने के बजाय दर्जी के यहाँ चले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम दद्दा की फटकार से तो बच जाओगे। सनावर बरामदे में कुर्सी डाले अखबार से मुंह छुपाए सुस्ता रही थी और रॉकी की बेतुकी बकवास से खासी तंग आ चुकी थी। अच्छा याद दिलाया आपने, अगर ईद के दिन तक इनकी नई शेरवानी ना सिल सकी तो मेरी शामत आ जाएगी। तुम्हारी क्यों? भाई जाहिर है उन्हें शेरवानी में पैक तो मुझे ही करना पड़ेगा, और वो भी ऐसी सूरत में कि ईद के रोज कुर्बानी भी की जा रही हो। और आपको तो इल्म है कि दद्दा गोश्त के कितने शौकीन हैं।
रॉकी, जरा जाकर हसन से ये तो मालूम कराओ कि वो ईद के रोज कौन सा लिबास पहनना पसंद करेंगे, बल्कि अगर हो सके तो लिबास लेकर आना ताकि आज ही इस्त्री किया जा सके। कल तो किचन के कई काम निपटाने हैं और परसों ईद के रोज तो ऐसे कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मीना अपनी टेरेस की ग्रिल से लगी हदायतनामा जारी कर रही थी। क्या मतलब, ये नवाब साहब और उनकी वालदा मोहतरमा ईद के रोज भी यहाँ से नहीं टलेंगे? सनावर की सारी सुस्ती उड़न छू हो चुकी थी। टलेंगे, जरूर टलेंगे, मगर ईद मनाने और ईद की शाम को मंगनी करने के बाद। ऐसा इत्मीनान भरा लहजा और ऐसा धमाके खेज लफ्ज। सनावर हक्का बक्का सी अपनी जगह बैठी रह गई। ये क्या कह रही है मीना आपी? बहुत देर बाद हवासों ने साथ दिया था। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। नहीं, मैं अभी अम्मी से। वो एक झटके से उठी थी, मगर तख्त पर नीम दराज सब्बी ने फौरन ही दोनों टांगे उसके सामने बिछा दी थी। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अम्मी हजूर तो शुक्राने के आधे से ज्यादा वजीफे पढ़ चुकी होंगी, लिहाजा अब आपका उनके पास जाना बेकार है। सब्बी च्युइंगम चबाते हुए बड़े मजे से कह रहा था। उसे एकदम रोना आ गया। यानी मेरी ही जिंदगी के बारे में फैसला किया जा रहा है और मुझसे ही पूछने की जहमत नहीं की किसी ने। वो धम से वहीं तख्त पर बैठ गई थी। भाई, आपसे पूछने की जरूरत ही क्या थी? सब जानते हैं कि आप दुख्तरे मशरिक अपने बुजुर्गों के फैसले पर सर झुकाने में लम्हों की देर नहीं करेंगी और उनकी रजा में दिलो जान से राजी हो जाएंगी। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसने सनावर के झुके चेहरे को खोजने की कोशिश की। जवाबन सनावर बगैर कुछ कहे दोनों हाथों में मुंह छुपाकर सिसकने लगी। अरे अरे, अभी तो सिर्फ मंगनी हो रही है, अभी से रोना शुरू कर दिया। सब्बी ने जबरदस्ती उसके दोनों हाथ चेहरे से हटाने सनावर ने बुरी तरह से उसके हाथ झटक दिए। बात नहीं करो तुम मुझसे। ठीक है, नहीं करता, मगर पता तो चले कि खुशी में रो रही हैं। मगर पता तो चले कि किस खुशी में रो रही हैं। उसकी आंखों से गिरते मोटे मोटे आंसू देख सभी की जान पर बनाई थी। इडियट, खुशी में रोया जाता है क्या? उसके रोने में शिद्दत आ गई। तो क्या आप दुखी हैं? मगर किस बात पर? यानी अभी कोई बात ही नहीं हुई? या अल्लाह, ये कैसे लोग हैं, मेरे दुख को समझ ही नहीं सकते। सनावर ने लगे हाथों अल्लाह से भी शिकवा कर डाला। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी ने कहने के साथ ही अपनी कोशिश का आगाज किया। क्या खाब कोशिश कर रहे हो तुम? अभी तक तुम्हें इतना ही मालूम नहीं हुआ कि उस बांगड़ू नवाब से शादी नहीं करना चाहती। बांगड़ू और नवाब हसन? तोबा कीजिए तोबा। सभी कानों को हाथ लगाता उठ बैठा था। उन जैसा स्मार्ट और डैशिंग बंदा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मुझे जरूरत ही क्या है उन जैसा बंदा ढूंढने की, और खुदा ना करे जो उन जैसा कोई दूसरा इस धरती पर मौजूद हो। मेरी तो जान को आ गया है ये नवाब खानदान। सनावर रोना भूलकर उन्हें कोसने लगी थी। एक वो आए मोहतरमा मेहनाज साहिबा, बजाय इसके कि बेटे को लेकर यहाँ से कूच फरमाती, उल्टा खुद भी यहाँ डेरा डालकर बैठ गई। ऊपर से मंगनी का शोशा छोड़ दिया है, लेके ईद का मजा भी खराब कर दिया। ओफो, मेरी समझ में नहीं आता कि उनमें कमी क्या है जो आप सभी रिच हो गया था और सनावर तो गोया इस बात पर पतंगे लग गए थे। कमी उनमें कहाँ, कमी तो मुझ में है। लूली लंगड़ी हूँ, अंधी हूँ, बहरी हूँ, जिसे कुएं में धक्का देने को घर भर बेचैन नजर आ रहा है। और कुछ नहीं सूझा तो झट से ईद पर मेरी कुर्बानी का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन एक बात मैं भी बता दूं, अगर मेरी मर्जी के बगैर कोई फैसला किया गया तो ऐन ईद सईद की सुबह मीनारे पाकिस्तान से कूदकर जान दे दूंगी। आखिरी बात फुल वॉल्यूम में कही गई थी ताकि इधर उधर और ऊपर नीचे सब तक ही पहुंच सके। इतलान अर्ज है कि साहिवाल में मीनारे पाकिस्तान मौजूद नहीं। मीना आपी ने रेलिंग से झुककर उसे इतला दी तो वो सुलग गई। तो ठीक है, नहर में कूदकर भी मरा जा सकता है। वही नहर ना जिसमें छोटे छोटे बच्चे सुबह शाम गोता लगाते हुए नजर आते हैं। वाह सनावर बीबी, मुझे तुमसे इसी बहादुरी की उम्मीद थी। मेरी जान, इससे ज्यादा पानी तो बाथरूम के टब में मौजूद है, वहीं कोशिश कर देखो, हो सकता है बात बन जाए। मीना आपी का लहजा भरपूर तंज लिए हुए था। सनावर का दिल चाहा वहीं तख्त पर बैठे बैठे पट से गिरे और इस जालिम दुनिया से कूच कर जाए। अब खामोश क्यों हो गई चंदा? कोई नया इरादा बन रहा है क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको अभी और इसी वक्त आपके ससुराल भिजवाती हूँ कि ये सारा फसाद आप ही का फैलाया हुआ है। उसके बाद दत्ता जान से बात करूंगी, और अगर वो भी नहीं माने तो फिर मुझे नवाब हसन से मिलने से कोई नहीं रोक सकेगा। उसके अटल इरादे पर मीना आपी खुशी से चिल्ला उठी थी। अरे, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम बस एक बार नवाब हसन से मिल लो। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपकी हसरत पूरी कर देती हूँ। जा रही हूँ उनसे मिलने ताकि हकीकत हाल से बाखबर हो सके वो। बालों में उंगलियां फेरकर उसने हाथ झाड़े और अनक्सी की तरफ चल दी। शिकन आलूद लिबास, बाल चोटी और परांदे से बेनियाज, पाँव से हस्बे आदत गायब चप्पल, गायब दुपट्टा दाएं कंधे पर और आधा जमीन पर। अरे अरे, पकड़ो इसे। मीना अभी मुंह खोले उसका जायजा लेते पता नहीं क्या लिखा हुआ है।
मीना आपी मुंह खोले उसका जायजा लेते और उसके बाद होश में आई तो चीख उठी और उनकी चीख पर लब्बैक कहते हुए नाजनीन और मेहरीन भगदड़ सनावर की तरफ भागी थी, लेकिन उनके पहुंचने से कबल ही सनावर एनेक्सी में दाखिल हो चुकी थी। उफ, मुझे तो सख्त वहशत हो रही है। ये भूत का बच्चा भी सोने नहीं आ रहा, वरना मैं ही जाकर कनसुइयां ले लेती। मीना आपी गुड्डू को बुरी तरह थपक रही थी। भूत का बच्चा। कमरे के बीचों बीच चकराती नाजनीन ने हैरत से मुड़कर आपी को देखा और गालबन उनकी बेतहाशा वहशत को महसूस करके वो बगैर उनको टोके दोबारा चकराने में मसरूफ हो गई। मीना आपी, सुइयां कहाँ से लानी है, हमको बताएं, हम ला देते हैं। कमरे में दाखिल होते रॉकी ने मीना आपी की आखिरी बात सुनी थी। चलो जी नाजनी, मंगवाओ इसे सुइयां और सबसे पहले इस बदबक का मुंह सीधो। मीना आपी दांत पीस कर रह गई। मुझे तो होल उठ रहे हैं, पता नहीं सनावर आपी उनसे किस तरह पेश आए। ऊपर से अम्मी भी हुसैनी खाला के यहाँ जाकर बैठ गई हैं, वरना वही सनावर को रोक लेती। महरीन खिड़की से अनेक्सी का जायजा लेते लेते थक गई थी। अम्मी कैसे रोक लेती सनावर को, उनके पास कोई रिमोट कंट्रोल तो नहीं था सनावर का। मीना आपी फाड़ खाने वाले लहजे में बोली थी, अगर इस वक्त तुम दोनों ने हिम्मत दिखाई होती तो ये वक्त ना देखना पड़ता। जी हाँ, मगर ये दोनों मोहतरमाएं तो स्लो मोशन में भाग रही थी। सभी ने नाजनीन और महरीन का मजाका उड़ाया, तो खुद भाग लिया होता उस वक्त तो जनाब तख्त से चिपक कर रह गए थे। और ये मीना आपी भी तो तीसरी ही सीढ़ी पर ढेर हो गई थी। अब सारा इल्जाम हमारे सर पर लग गया है। महरीन पाँव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। रॉकी बेचारा टुकर टुकर सबकी शक्ल देखने लगा कि दर्जी के यहाँ जाने के बायस वो इस सारी सूरत हाल से बेखबर था। 15-20 मिनट गुजर गए। मीना आपी की बड़बड़ाहट धीमी पड़ गई थी। नाजनीन चकराते चकराते थक हार कर सोफे पर गिर गई थी। सभी बेड पर ऊंधा लेटा टांगे झुलाने लगा था। तभी धाड़ से दरवाजा खुला और वैसी ही धाड़ से बंद कर दिया गया। कमरे में बैठे सभी नफूस बुरी तरह उछल पड़े थे और फिर सनावर को देखते उसकी तरफ लपके थे। क्या करके आई हो, कहीं कुछ गलत सलत तो नहीं कह दिया उनसे। मीना अभी मुतफक्किर से उसके सामने जा खड़ी हुई। उन्होंने तुम्हें देख लिया, क्या रिस्पॉन्स दिया, नाराज तो नहीं हुए? उन सबने सवालात की बौछार कर दी। सनावर ने निहायत खामोशी से उन सबके सवालात सुने थे। फिर उन सबने सनावर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी और अगले ही पल घबरा गए थे जब उन्होंने सनावर की मुस्कुराहट को कहकहों में ढलते देखा। अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? मीना अभी हैरान और मुताज्जब खड़ी थी, जबकि सनावर के कहकहे बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे। लगता है बहुत बेइज्जती हुई है। सभी का अंदाजा कुछ कुछ दुरुस्त ही लग रहा था। पागल तो नहीं हो गई, क्यों बिला वजह हंसे जा रही हो? नाजनीन ने गुस्से से उसे झंझोड़ा, मगर उसकी हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। या अल्लाह, ये तो सचमुच बावली हो गई हैं। रॉकी के हाथ पांव फूल रहे थे। सनावर, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, बंद करो ये जिन्नाती कह कहे, वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। मीना आपी के असद परेशान लहजे पर सनावर ने दुपट्टा मुंह में ठोंस कर बामुश्किल खुद को मजीद हंसने से रोका और फिर निढाल होते हुए बेड पर गिर गई। सनावर, तुम नवाब हसान से मिलकर आई हो? उसकी हंसी थमते ही नाजनीन ने सवाल किया। नवाब हसान? सनावर ने जेरे लब दोहराया और फिर खीखी करने लगी। बस भी करो, क्यों खामखा दान निकाले जा रही हो? उसने चिढ़कर सनावर को टोका। अपने दान निकाल रही हूँ, तुम्हारे तो नहीं निकाल रही ना। सनावर बामुश्किल सीधी हुई और दुपट्टे से आंखों में नमी को साफ करने लगी। सनावर, जल्दी से बता दो कि क्या हुआ, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। मीना आपी को तो जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ था। बता दूं? उसने इजाजत तलब नजरों से उन्हें देखा। हाँ, जल्दी से पूरी बात बताओ। हूँ तो मीना आपी, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो घड़ी भर के लिए रुकी। मीना आपी ने खुश होंठों को तर किया कि मैं इस मंगनी के लिए तैयार हूँ। सनावर इतना कहकर छपाक से कमरे से बाहर निकल गई और कमरे में बैठे तमाम अफराद अपनी जगह हक्के बक्के रह गए थे। ये क्या कहकर गई है? मीना आपी ने हैरत से नाजनीन को देखा। जवाब पर नाजनीन सब्बी का मुंह देखने लगी। सब्बी, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? पता नहीं, मुझे तो पहले ही अपनी समातों पर शक रहता है। क्या वाकई सनावर बाजी इस मंगनी के लिए तैयार हैं? रॉकी की हैरतों में खुशगवारियत का आंसर नुमाया था। मगर क्यों, कब और कैसे? ये वो सवाल थे जिनका जवाब लेने के लिए वो सब सनावर की तलाश में भाग खड़े हुए थे। ईद का दिन आ पहुंचा था, लेकिन ये मुअम्मा अब तक हल नहीं हो सका था कि आखिर शहजादी सनावर यकायक नवाब हसान से मंगनी पर कैसे रजामंद हो गई। वो भी इस कदर खुशी खुशी कि कल से मुस्कुराहट उसके होंठों से जुदा ही नहीं हुई थी। बगैर किसी जोर जबरदस्ती के उसने निहायत एहतमाम से बालों में नकली चोटी ही नहीं, परांदा भी डाल लिया था। और तो और पान इतना अच्छा बनाने लगी थी कि दद्दा ने एक ही दिन में बीसियों ग्लोरियां बनवाई थी उसी से। मीना आपी, नाजनीन और महरीन की हालत अलबत्ता नाजुक थी। उन सब ने असल बात उगलवाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर उसकी खामोशी थी कि खत्म होने में ही ना आ रही थी। नाजनीन और महरीन ने नाराजगी के तौर पर तमाम कामों से हाथ उठा लिए, मगर वो मजे से सब काम निपटाती रहीं। ईद की सुबह सबके नाश्ते का इंतजाम उसी ने किया। सबके कपड़े प्रेस करने और मेहमानों को रिसीव करने की जिम्मेदारी भी उसी ने निभाई।
फिर कसाब आया, बकरा भी कट गया और अगले चंद घंटों में मोहल्ले में बांट भी दिया गया। और रॉकी और सब्बी ने बकरे की जुदाई में 8-8 आंसू भी बहाए। और जब दिन ढलने लगा तब नाजनीन और मेहरीन को मजबूरन नाराजगी खत्म करके उस तक आना पड़ा कि शाम को मंगनी के फंक्शन की तैयारी जाहिर है उन्हें ही करनी थी। क्या बना रही हो? मेहरीन ने रूठे रूठे लहजे में उसे दोस्ती का आगाज किया। हुसैनी कबाब। हैं? हुसैनी खाला तुम्हारे हत्थे कब चढ़ गई? मेहरीन की बात पर वो खिलखिलाकर हंस दी थी, जबकि नाजनीन जलकर रह गई। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नहीं, क्योंकि तरकीब में कहीं भी ये नहीं लिखा था कि हुसैनी कबाब बनाते हुए शर्मिंदा होना लाजिम है। वो खासी तरंग में थी। नाजनीन ने एक बार फिर कड़े तेवरों से उसे देखा और फिर नाराजगी से रुख मोड़ लिया। कमाल है भाई, एक तो मेरी समझ में तुम लोग नहीं आते। जब मैं रिश्ते पर राजी नहीं थी तब भी तुम लोगों को एतराज था। अब राजी हूं तो भी सबके सब खफा। आखिर चाहते क्या हो तुम लोग? उसने पतीली में कीमे के साथ कटे हुए लीमू और नमक डालते हुए कहा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इस काया पलट की असल वजह बता दो। मीना आपी गुड्डू का फीडर बनाने आई थी। सनावर की बात सुनी तो झट से मुद्दा बयान कर दिया। कोई खास वजह नहीं आपी, बस दुख्तरे मशरिक होना, वालदैन की रजा में राजी होना मेरे लिए बेहतर था। सो अब मैं तैयार हूँ और आप सबकी भी तो यही ख्वाहिश थी ना, फिर अब इस ख्वाहिश पर अमल दरामद में तामुल क्यों? वो चूल्हा बंद करके उनकी तरफ पलटी। लेकिन वो तमाम एतराजात, खदशात और मसनूईपन से बेतहा उकताहट, इस सब का क्या होगा? वो सब भाड़ में गया। आखिर आप लोगों ने कुछ सोचकर ही ये ड्रामा शुरू किया होगा ना, सो अब मैंने भी परवाह छोड़ दी है। कल अगर कुछ हुआ भी तो आपसे मदद ले लूंगी। हाँ, अलबत्ता वहां जाकर खासी परेशानी होगी। सुना है दीवान खाना आने वालों से भरा रहता है। दिन में 20-25 पान की ग्लोरियां एक वक्त में बनाई जाती हैं। मेहमानों की तवाज़ा के लिए सारा दिन नेमक खाना में घुसना होगा। अल्लाह कैसा होगा वो वक्त जब पान मेरा ओढ़ना बिछोना होगा और नेमत खाना मेरी क्याम का। लेकिन खैर, तब की तब देखी जाएगी। अब आज की फिक्र करें, सीख कबाब का मसाला तैयार कर लें, क्योंकि दद्दा को हमारे हाथ के सीख कबाब कभी पसंद नहीं आते। वो तमानियत का अजीम शान मुजाहिरा करती हुई किचन से बाहर आ गई थी, जबकि वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गईं। मीना आपी, बात मुझसे हजम नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन अनेक्सी में सनावर और नवाब हसान की आपस में टक्कर हो गई हो और वो तूफानी किस्म के इश्क में मुब्तला हो गए हों? मेहरीन के दिमाग में कीड़ा कुलबुलाया था। नहीं भाई, नवाब हसान और उनकी वालदा की बातों से इतना तो मालूम हो ही गया है कि उस दिन सनावर अनेक्सी में गई जरूर थी, मगर उनसे मुलाकात किए बगैर वापिस आ गई थी। वो तो जाहिरी सी बात है, क्योंकि अगर इस हुलिये में सनावर उनसे मिलाती तो आज ईद के दिन बकरे की जगह हम और आप कट रहे होते। नाजनीन ने कबाब तलना शुरू कर दिए थे। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मेहरीन की सुई एक ही जगह अटकी हुई थी। दफा करो भाई, मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ नहीं, ये शुरू से ही ऐसे मार के सर अंजाम देती आई है। लिहाजा तुम लोग भी आम खाओ, पेड़ मत गिनो। हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि चलो ये राजी तो हुई, वरना इतने अच्छे रिश्ते आजकल कहाँ मिलते हैं। चलो खैर, तुम लोग जल्दी से यहाँ का काम निपटाओ, मैं सनावर को नया सूट देकर आती हूँ पहनने के लिए। नया सूट? नाजनीन चौंक गई। हाँ भाई, नवाब हसान की वालदा लेकर आई हैं मंगनी पर पहनने के लिए। मीना अभी बताकर किचन से बाहर आ गई थी। गुड्डू को फीडर देकर अम्मी के पास छोड़ा, जो आज नया नकोर गरारा सूट पहनकर अपनी जगह से हिलने तक को तैयार नहीं थी। मीना अपी ने लॉन में कुर्सियां लगाते रॉकी को आवाज देकर कोयले सुलगाने की हदायत की और फिर सनावर के कमरे में चली आई। वो बेड पर दराज गालबन दिन भर की थकन उतार रही थी। अब यूं लेट लेट कर वक्त बर्बाद ना करो, शाम तो हो चुकी है, थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा। मीना आपी क्यों पजल कर रही हैं? यहाँ कौन सा ग्रैंड फंक्शन हो रहा है? वही घर वाले ही तो हैं सब। जब दिल चाहा उठकर रस्म कर लेंगे। उस पर कसलमंदी सवार थी। खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, तस्वीरें वगैरह बनेगी ना, और फिर नवाब हसान भी तुम्हें पहली बार देखेंगे। अभी से ढंग से तैयार होना शुरू करोगी तो मुनासिब रहेगा। अच्छा होता जो कल 1-8 घंटे के लिए पार्लर हो आती। लेकिन खैर, अब ऐसा करो, अपनी आईब्रोज की शेप थोड़ी दुरुस्त कर लो। और हाँ, ये नया सूट तुम्हारी अलमारी में पड़ा है, इसे निकाल दो। मीना आपी ने कहा और फिर खुद ही निकालकर बेड पर फैला दिया। हल्के गुलाबी रंग का गरारा सूट था, जिस पर सुर्ख रेशम का हल्का सा काम किया गया था। गुलाबी रंग का खूबसूरत सा परांदा भी साथ था, जिसके आखिरी सिरों पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। मीना आपी ने नकली चुटिया खोलकर उसे दोबारा ब्रश से बनाया था और निहायत एहतियात से दोबारा चुटिया की शक्ल दे दी थी। ये लो, सब चीजें तैयार हैं, खूब अच्छा सा मेकअप करना। अगर कहो तो नाजनीन को भेज दूं तुम्हारे पास? उन्होंने जाते जाते पूछा। नहीं आपी, मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, उसने फौरन मना कर दिया। चलो अच्छी बात है, मैं जरा किचन में हो आऊं। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। उनके जाने के बाद सनावर एक तवील सांस लेकर उठ बैठी थी। एक नजर सूट पर डालने के बाद उसने परांदा हाथ में ले लिया और उसके घुंघरुओं को देखने लगी। लॉन आबाद होते ही जैसे सुरमई शाम की रौनक में इजाफा हो गया था। लॉन के ऐन वस्त में सोफा रखकर नवाब हसान और सनावर के लिए नशिस्त का एहतमाम किया गया था।
यही दोनों तरफ के बुजुर्गों ने उन्हें अंगूठियां पहनानी थीं। सोफे के सामने मेज पर रखे गुलदान में मेहरीन ने लंबी टहनियों वाले गुलाब सजा दिए थे। सोफे के ऐन सामने दाएं बाएं तरफ गोल मेजों के इर्द गिर्द कुर्सियां भी दायरे की शक्ल में रखी गई थीं। उन्हीं कुर्सियों में से एक पर नवाब हसन खासे संजीदा और रंजीदा अंदाज में बैठे हुए थे कि इंतहाई कोशिश के बावजूद भी वो अपनी वालदा मोहतरमा से मंगनी से पहले सनावर को देखने की जिद नहीं मनवा सके थे। उससे जरा फासले पर सनावर की अम्मी और महनाज बेगम तक संभाले अपने अपने खानदान की शराफत और नजाबत के कसीदे पढ़ने में मसरूफ थीं। मेहरीन और नाजनीन इन सबसे काफी दूर चहलकदमी करते हुए खुशगपियों में मसरूफ थीं। उनकी दबी दबी हंसी की आवाजें अलबत्ता वक्फे वक्फे से सबको सुनाई दे जाती थीं। और उन सबसे बेनियाज दद्दा हजूर लॉन के इंतहाई दाएं तरफ शेरवानी उतारे, कुर्ते के बाजू चढ़ाए, कोयलों पर कबाब भूनने की तैयारी कर रहे थे। फिजा में दहकते कोयलों और मसालेदार कबाबों की खुशबू अक्सरियत के सब्र जब्त का इम्तिहान ले रही थी। मगर अफसोस कि मीना आपी के सिवा बाकी सबका उनके पास जाना ममनू करार दिया जा चुका था। जरा देर बाद मीना आपी भी सीखों में कबाब पिरोने के बाद वहां से चली आई थीं। रॉकी और सब्बी तो कोयले दहकाने और गोश्त बांटने के बाद बकौल मेहरीन खासे मैले कुचैले हो चुके थे, लिहाजा वो दोनों पहली फुर्सत में नहा धोकर सफेद बुर्राक कुर्ता पजामा पहने जमे जमाए बालों के साथ नवाब हसन के पास आ बैठे थे। क्या बात है सबी उल हसन, आप आज काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। नवाब हसन सब्बी की गैर मामूली खामोशी नोट किए बगैर ना रुक सके थे। बस हजूर क्या बताएं, ऐसा घाव दिया है उसने हमें कि जीने की सूरत दिखाई देती है ना मौत के आगोश में करार आता है। ऐसा घायल कर देने वाला अंदाज था कि नवाब हसन परेशान हो उठे थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? बकरे की, सभी से पहले रॉकी ने ठग से जवाब दिया था। बकरे की? नवाब साहब की हैरत बजा थी। जी हाँ, वही बकरा जो कई घंटे कबल कट और बढ़ चुका है और जिसके कबाब थोड़ी देर में रेडी होने के बाद आप नोश फरमाएंगे। रॉकी ने निहायत इत्मीनान से फिजा में कबाबों की खुशबू को महसूस किया था। ऐसी अजीम जुदाई का सदमा दिया है उसने कि रातों रात शायर हो गए हम तो। सब्बी की सर्द आह पर वो दोनों ठठर कर रह गए। क्या वाकई ये इंकशाफ नवाब के साथ साथ रॉकी पर भी हुआ था? 100% वाकई हजूर, कहिए तो नमूना पेश करूं। झट इजाजत तलब की गई। इरशाद इरशाद। हाँ तो अर्ज कर रहा हूँ, अभी रात ही बनाई है। सभी ने बात संवारते हुए हाई को अर्ज की थी। रात भर खिड़की के बाहर बोलता रहा एक बकरा। ये क्या है साहब? नवाब हसन ने खासी संजीदगी से पूछा। हाई को है जनाब। ओ अच्छा अच्छा, मैं समझा शायरी है। वाह भाई बहुत खूब। नवाब हसन की दाद पर सभी का चेहरा खिल उठा था। दूसरी हाई को पेशा खिदमत है, जरा तवज्जो कीजिए। सभी खनकारा था। भूरे बालों और गजाली आंखों वाला मैंने देखा एक बकरा। माशाल्लाह क्या खूबसूरत बकरा है। गालबन ये वही बकरा था जो रात भर खिड़की से बाहर बोलता रहा था। नवाब साहब झूमते हुए अंदाजा लगाकर बोले, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो शायरी कहाँ है जो आपने रात को बनाई थी? क्या मतलब? सभी की आंखें निकल आईं। वह मेरा मतलब है ऐसी शायरी तो मैं यहाँ बैठे बैठे बना सकता हूँ। बहुत खूब, तो बनाइए जरा। सभी ने रॉकी के दावे को चैलेंज किया था। ठीक है जरा सुनिए। रॉकी ने बकायदा लहक कर अपनी शायरी का आगाज किया था। हिरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें। वाह वाह, आगाज शानदार था। नवाब साहब दादे तहसीन दिए बगैर ना रह सके, जबकि सभी पहलू बदल कर रह गया। शुक्रिया शुक्रिया, अर्ज किया है। रॉकी पूरी तरह फैल चुका था। हिरनी जैसी आंखें, लहरों जैसी जुल्फें, कद लैला के मजनू सा, रंगत रांझे जैसी। उसे देख के कहता हूँ, ए काश तुझे रब ने बकरा ना बनाया होता। रॉकी की नज़म तमाम हुई तो हाजरीन सकते के आलम में थे। ना वाह वाह की आवाज बुलंद हुई, ना किसी ने हाथ आगे बढ़ाकर थपकी दी। रॉकी ने डरते डरते आंखें खोलकर सब्बी और नवाब हसन की तरफ देखा जो टिकटिकी बांधे उसे घूर रहे थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसे सुनकर मालूम हुआ कि ये शायरी वाकई बनाई गई है। नवाब साहब ने ऐसे दिलगीर अंदाज में कहा कि रॉकी सर खुजाकर रह गया और सब्बी मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ गया। मेहरीन जाओ भाई सनावर को यहीं ले आओ, बेचारी शर्म के मारे अपने कमरे में घुसी बैठी है। अम्मी की आवाज पर नवाब हसन ने कदरे सुकून का सांस लिया। किसी को ख्याल तो आया। मेहरीन फौरन उठकर चली गई थी। सनावर गालबन कपड़े चेंज कर रही थी। बंद दरवाजे से ही मेहरीन को लुटा दिया तो वो दोबारा चली आई, जहाँ हर फर्द अपने सामने सलाद, रायता, पुदीने और इमली की चटनी रखे सीब कबाब और कलेजी के कबाबों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और दद्दा थे कि जी भरकर आजमा रहे थे। कमाल है, इतनी देर? नवाब हसन उकताए उकताए लग रहे थे। किसमें? सभी चौंका। आने में? किसके आने में? मेरा मतलब है कबाबों के आने में। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वो बरवक्त संभले थे। फिर सब्बी तो दद्दा की तरफ चला गया, मगर उनकी निगाहें बरामदे के आसपास भटकने लगी, जहां से किसी भी वक्त सनावर बरामद हो सकती थी।
ओफो भई, अब आ भी चुको। वो सलाद के पत्ते दांतों से कुतरने लगे। शाम के सुरमई रंग में स्याह रंग घुलने लगा। इस मलगजे अंधेरे में रॉकी लॉन की तमाम लाइट्स ऑन कर रहा था। हवा में हल्की सी ठंडक से महसूस होते हुए नवाब हसन ने यूं ही सर उठाकर सामने देखा और फिर अगले ही लम्हे उनकी निगाहों के साथ दिलो दिमाग में भी बिजली चमक गई थी। वो जो कोई भी थी बेहद खूबसूरत थी। एक लम्हे के लिए नवाब साहब अपनी जगह साकी से रह गए थे, क्योंकि वो लड़की अजनबी और उसका हुलिया इस माहौल से कतई मुताबिकत नहीं रखता था। वो डार्क मैरून चूड़ीदार पजामे और फराक में मलबूस थी। बड़ा सा दुपट्टा स्टाइलिश अंदाज से ओढ़ा गया था। तराशीदा बाल कंधों तक लहरा रहे थे। वो निहायत एतमाद से कदम उठाते ही लॉन की तरफ आ रही थी। हाय, मैं मर गई। ओ नो, ये क्या किया इसने? उफ, बेइज्जती। ये कौन है? नवाब हसन अपने अतराफ से उठती आवाजों से बेनियाज होकर सब्बी से पूछ रहे थे। ये सनावर के दोस्त हैं। नहीं, खुद सनावर, लेकिन नहीं, मालूम नहीं। सब्बी जाने क्यों हकला रहा था। बहन, ये शहजादी सनावर, इसके बालों को क्या हुआ? महनाज बेगम पूछ रही थी, मगर बहन साहिबा का बस नहीं चल रहा था कि लॉन फटे और वो उसमें समा जाएं। मीना आपी तो मट्टी का मादू बनी बैठी थी। हैरान परेशान सी नाजनीन ने मीना आपी को मुतवज्जा करने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो उसकी की गोद में लुढ़क गई। मेहरीन का रंग भी फीका पड़ चुका था और रॉकी चुकन्ना अंदाज में मेज के करीब खड़ा था ताकि बवक्ते जरूरत उसके नीचे घुस सके। अस्सलाम वालेकुम। सनावर के सलाम का जवाब कहीं से भी नहीं आया था। और मैं हूँ शहजादी सनावर, अपने असली और हकीकी रूप के साथ। उसने लम्हा भर के लिए नवाब हसन की आंखों में झांका था। मसनूईपन का खेल खेलते खेलते मैं उकता गई थी, इसलिए आज खुद अपनी शख्सियत के साथ आपके सामने चली आई। यकीनन आप सबको हैरत हो रही है, मगर मैं दोगलेपन की इंतहाओं को नहीं छूना चाहती, इसीलिए आज इतनी हिम्मत कर डाली। वो बहुत इत्मीनान से कुर्सी संभाल कर बैठ गई थी। नवाब हसन चंद कदम आगे जाकर जांचती नजरों से उसे देख रहे थे। अम्मी मुरझाए से अंदाज में तख्त पर बैठ चुकी थी। ये ठीक है कि मैं नवाब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ और मुझे इस पे फख्र भी है, लेकिन ये भी याद है कि हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं और बहुत सी रवायात जो कई सौ साल कबल नवाब खानदान की पहचान समझी जाती थी, आज उन्हें अपने साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं। हम पान नहीं खाएंगे, गरारा नहीं पहनेंगे, गैर जरूरी रसूमात पर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो भी हमारे खानदान की इज्जत वकार में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि बफजले खुदा हमारे बुजुर्गों की तालीम और तरबियत से हमारे इखलाक इक़दार में वो शाइस्तगी मौजूद है जो किसी अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और मेहनाज आंटी, मंगनी का जो सूट आप लेकर आई हैं, जूं का तू पड़ा है, मैंने इसलिए नहीं पहना कि हो सकता है वो मेरे लिए ना हो। अपनी बात खत्म करके वो कलाइयों में पड़ी चूड़ियों से खेलने लगी। माहौल पर सन्नाटा जूं का तू मौजूद था। नवाब हसन और महनाज बेगम हैरत के बाइस और बाकी अफराज शर्मिंदगी के बाइस साकित थे। कितने ही लम्हे यूं ही गुजर गए। तब सनावर इस तावील और बेमायनी खामोशी से उकताकर उठ खड़ी हुई, मगर अभी वो कदम उठा ना पाई थी कि नवाब हसन उसके सामने आ खड़े हुए और बगौर उसे देखने लगा। तो अब वो नहीं जो नजर आती थी। चंद लम्हों बाद उनकी आवाज गूंजी थी। जी हाँ, उसने सर उठाकर गलती तस्लीम की। वालदा मोहतरमा, ये लड़की मुझे पसंद नहीं। उनकी बात सुनकर सनावर का रंग उड़ गया और बाकी सबका सांस रुक गया। बल्कि बहुत पसंद है। नवाब हसन ने अपना अधूरा जुमला मुकम्मल किया और पूरा लॉन मुख्तलिफ किस्म की चीखों से गूंज उठा था। सनावर ने तवील सांस लेते हुए सर उठाकर देखा। नवाब हसन की आंखें अंदरूनी खुशी से जगमगा रही थीं। मुझे मेरा आइडियल मिल गया है। ओह यस, यू आर माई आइडियल। नवाब हसन किसी नौ उम्र बच्चे की तरह चिल्लाए थे और फिर बर्फ गिरफ्तारी से महनाज बेगम की तरफ मुड़े। मामा, मैं आपकी खुशी में बखुशी राजी हूँ, लिहाजा जो काम आपके हाथों सर इंजाम होना था वो काम अब नवाब हसन आजम बजाते खुद सर इंजाम देंगे। उन्होंने चहकते हुए अपनी वालदा के हाथ से अंगूठी ली थी और लम्हे भर में पलट कर सनावर का हाथ थाम लिया था। अरे अरे, वो एकदम बौखला गई। जितना तंग करना था आप कर चुकी, अब आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। मगर हाँ, वो एक लम्हे को खामोश हो गए। मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि मैं भी आपको पसंद हूँ कि नहीं। अल्लाह रे मुसीबत, वो गड़बड़ा सी गई। नवाब हसन के हाथों में उसका हाथ हल्का सा कपकपाया तो उन्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। याहू का नारा लगाते हुए उन्होंने पुरजोश अंदाज में अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी थी। सब्बी का कैमरा कितनी ही देर से इस लम्हे के इंतजार में था। वो सूरत हाल को जानकर झटपट कबाबों पर झुक गए थे। सूरत हाल को जानकर झटपट कबाबों पर झुक गए थे। अम्मी और महनाज आंटी तख्त पर सर जोड़े मुस्कुरा रही थीं। मीना आपी मुंह फाड़े आंखें फैलाए हैरान खड़ी थीं। उनके हुक्म में रॉकी धमाल डाल रहा था। नाजनीन और मेहरीन बेतहाशा मुस्कुराते हुए अंगूठी पर नजरें जमाए खड़ी थीं। नवाब हसन की मोहब्बत लुटाती निगाहें सनावर के चेहरे पर जमी हुई थीं और सनावर के चेहरे पर फैली मुधर मुस्कान। सब्बी का कैमरा चंद सेकंड में उन खुशगवार लम्हात को हमेशा के लिए कैद कर गया और उसके साथ ही मुबारक सलामत का दौर शुरू हो गया। और मुंह मीठा करने की बजाय सबके सब दद्दा के बनाए गए कबाबों पर टूट पड़े थे और सनावर अपने हाथ में दमकती अंगूठी पर नजरें जमाए सोच रही थी।
معلوم نہیں ہم لوگ روپ بہروپ کا کھیل کھیلتے خود کو کہاں تک دھوکہ دیتے۔ اگر اس روز انیکسی میں نہ چلی گئی ہوتی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا جب وہ تیش کے عالم میں انیکسی کی طرف گئی تھی، مگر نواب حسان کے کمرے میں داخل ہونے سے قبل چند باتوں نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ نواب حسان تھے جو سخت اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہے تھے، فار گاڈ سیک ماما، میں تنگ آ گیا ہوں اس ساری سچویشن سے۔ ان غصوں میں میرے پاؤں سکڑنے لگتے ہیں اور میرے پاجامے میں بند ٹانگیں جینس کو ترس گئی ہیں۔ آپ جناب آداب کرتے کرتے میری زبان تھک گئی ہے۔ وقت بے وقت محاورے بول بول کر میں چکرا گیا ہوں اور میرے کان مشاعروں کی ریکارڈنگ سن سن کر تھک چکے ہیں۔ میں میر اور غالب کو مزید نہیں پڑھ سکتا۔ میری آنکھیں شیکسپیئر اور ہارڈے کو پڑھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ میری کھڑکی کے باہر ادھ کھائے پانوں کا ڈھیر لگ چکا ہے اور یہ گھر، مجھے لگتا ہے اس حویلی نما گھر میں چند بدرو ہیں جو سفید لباسوں میں یہاں سے وہاں بے آواز قدموں چلتی پھرتی ہیں، جو سوچ سوچ کر ہنستی ہیں اور جن سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ ممیز کی کیفیت میں حرکت کرتی ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مسمرزم کی کیفیت میں حرکت کرتی ہیں، ایک بنے بنائے سانچے میں ڈھلی ہوئی لڑکیاں۔ او نو مما، میں کسی روبوٹ نما لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک جیتی جاگتی ہنستی کھیلتی زندگی سے بھرپور لڑکی چاہیے۔ یہ بوبو ٹائپ شہزادی سناور میرے ساتھ بالکل سوٹ نہیں کرتی، جو من من کر کر بولتی ہو اور ہمہ وقت ڈری سہمی سی اپنے دوپٹے کی پناہ میں چھپی رہتی ہو۔ اور پھر اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی؟ سو پلیز آپ آج ہی ان لوگوں کو بتا دیں کہ ہم خاندانی نواب تو ہیں، مگر نوابوں کی یہ ظاہری خصوصیات ہمیں مفقود ہیں، اور ان کی آمد پر جو پاندان، خاصدان اور چاندیاں بچھائی گئی تھیں وہ سب کرائے کی تھیں۔ ہمارے گھر میں دیوان خانہ نہیں ڈرائنگ روم ہے، نعمت خانہ نہیں باورچی خانہ ہے، اور ہم بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے باقی سب لوگ۔ اور یہ بھی کہ ہم اپنے شاہانہ ادوار اپنی جاگیروں کے ساتھ ہندوستان میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ ڈونٹ بی سلی، تمہیں معلوم ہے یہ سب کے سب کتنے اچھے لوگ ہیں، ایسے خاندانی لوگ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتے۔ اور سناور، وہ لڑکی تو مجھے اتنی پسند ہے کہ بس۔ مہناز آنٹی کی بات پوری ہونے سے قبل ہی وہ انیکسی سے واپس لوٹ آئی تھی اور اصل صورتحال جاننے کے بعد ہی اس منگنی پر رضامند ہو گئی تھی۔ تم ابھی سے کہاں کھو گئیں؟ ابھی تو نواب صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ نازنین نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ چونک سی گئی۔ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ خوش ہونا؟ مینا اپی اس کے چہرے کو کھوج رہی تھی۔ وہ خود کو دو گہری نگاہوں کے حصار میں محسوس کرتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے؟ بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے نا۔ وہ چہروں پر جھلملاتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی اور اس حقیقت کو بھی جو بہت ہی خوبصورت مستقبل کا پیام بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک انسان کی ذات ہی اس کا اصل تشخص ہے جسے چھپانے کی کوشش کی جائے تو سراسر نقصان ہوتا ہے۔ تھینک گاڈ میں کسی بھی نقصان سے بچ گئی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے چاند کو نظر بھر کر دیکھا تھا اور پھر سب کے ساتھ کباب اڑانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ختم شد۔ یہ سٹوری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور بہت ہی اچھی سٹوری ہے، فنی سی اور انٹرسٹنگ ہے۔ تو سنیے اور سننے کے بعد مجھے لازمی بتائیے کہ کیسی لگی، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کیا کریں گے آپ، اور لائک کر دیں، لائک لازمی کرنا ہے آپ نے، لائک کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔